Hello everyone, welcome to all of you on this YouTube channel, Saurabh Goswami, History Optional for UPSC. So today we are going to discuss History Optional previous year questions for Modern Indian History segment for the year 2020. As I have previously discussed that year 2020 questions, this is part B of the video because we have in last class, okay, we have discussed question number 1 from PYQ. Question number 1, this is a set of total 5 questions. So this we have discussed in part A video. So in part B video, we are going to discuss question number 2. It means that in today's class, we will discuss 3 questions. Okay, these 3 questions are of 50 marks, 2 questions are 20 marker, and 1 question is of 10 mark. Okay, so here 20 marker question, the word limit is 300, and for 10 marker question, the word limit is 150. So these are 3 questions that we are going to discuss. Here I have written in part B video, we are going to discuss question number 2 A, B, C. In part C, we will discuss question number 3 A, B, C, and in part D of video, we will discuss question number 4 A, B, C. So I hope that you have got this idea. In this way, we will be able to give more time on the detailed discussion of these questions. So this will be comfortable for you also. So let's start the discussion. Here, question number 2, let's first identify the themes from where the question has been asked. So here question number 2, the theme is Dupleix. And Dupleix is one of the most important topic in modern Indian history. When we read chapter 1, arrival of Europeans in India, French company in India, so Dupleix is one of the most important component of that chapter. So here the question has been asked from the topic Dupleix. The second question is related to the theme, that is revolt of 1857. We will discuss the questions later. Okay, so here the theme is related to the chapter revolt of 1857, and the third question is related to a theme, that is Santhal rebellion of 1855. Santhal rebellion of 1855-56. Basically, these 2 questions are from the same topic, revolts and rebellions, and we know that revolt of 1857 is the most important one. So these are 3 questions that we are going to discuss in today's class. So let's start with question number 2A. Okay, so let's start the discussion with question number 2A. First, read the question. The question is, I have decided that in these classes I will also use Hindi. It means I will teach in English, but at the same time I will also use Hindi. So this video will be useful for both category of students, English medium as well as Hindi medium, because it is not possible for me to give that much time to record separate videos. So I decided that here I will use both the languages, Hindi as well as English. I will not make it English, but I will use both the language. So look here. The question is, it was Dupleix who had first showed the way of intervening in the disputes of Indian rulers and thereby acquiring political control over territories. This is a statement, and this statement says that Dupleix was the first person in India who did what? Who innovated or invented a strategy. And what is that strategy? The strategy is intervening in the disputes of the Indian rulers. It means intervening in the local affairs of the rulers, native rulers, and as a result, after intervention, acquiring political control over vast territories. Okay, so this thing that the European groups like French and English, they intervened in the local matters or local affairs of the local internal disputes of the local rulers, and gradually they established political control over these states. Okay, it was done largely by the Britishers, but this policy was previously invented by
Dupleix. This is the statement, and I think that all of you are familiar with this, okay, knowledge and information. Not only optional students, but GS students also know this. A technique which was later perfected by the English East India Company. It means Dupleix invented this technique, but this technique was later perfected by East India Company. Okay, it means that Dupleix was the inventor, but this technique, this strategy was later perfected and applied on a large scale by English East India Company. This is the question, and here you have to elaborate this statement. Okay, तो इस स्टेटमेंट में क्या कहा जा रहा है कि डुप्ले एक ऐसा एडमिनिस्ट्रेटर था जिसने पहली बार एक तकनीक, एक स्ट्रेटजी यूज की। डुप्ले ने पहली बार एक तकनीक या स्ट्रेटजी इनोवेट की, और वो इनोवेशन क्या था कि इंडिया में जो लोकल रूलर्स हैं, भारतीय राजा, इनके जो आपसी झगड़े हैं, इंटरनल डिस्प्यूट्स हैं, उसमें इंटरफेयर करना, उसमें हस्तक्षेप करना, और फिर उसके बाद विस्तृत राज्य क्षेत्रों पर राजनीतिक नियंत्रण स्थापित करना। मीन्स जो उनके एक्सटेंडेड टेरिटरीज, एरियाज है, जो उन लोकल रूलर्स के स्टेट्स हैं, उन पर धीरे धीरे पॉलिटिकल कंट्रोल, राजनीतिक नियंत्रण स्थापित करना। और आगे चलकर इस तकनीक को बाद में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने, यानी इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने निपुणता के साथ, परफेक्शन के साथ यूज किया। तो एलेबोरेट करिए, सविस्तार व्याख्या करिए। दिस इज द question. Now we'll discuss the answer of this question. But before discussing the answer of the question, I have already told you that I have already shared this information with you that if you have a good conceptual understanding, so no any question in your mains exam will appear to be difficult. But if you lack understanding, so the questions become difficult. For example, all of you have studied arrival of European companies in India, advent of European companies in India. If you are GS student or optional student, all of you have studied. All of you have read about Dupleix, okay, the French governor Dupleix, who came to India in 1742. All of you are familiar with this. And Dupleix came here, and Dupleix did what? Dupleix introduced a very important change in French East India Company policy in India. Previously, French East India Company was involved in doing trade and commerce, but now after Dupleix, after 1742, we see the orientation of French East India Company changed completely. There was a transformation. The company which was previously focusing more and more on trade and commerce, now the same company was trying to build a territorial empire in India. And for that, Dupleix did what? Dupleix invented a strategy. And what is the strategy? So there was already political fragmentation. If you look, you will find that after 1707, the fragmentation of central authority was there. Mughal Empire was in a declining phase, and in South India also you will find that there were different rulers, okay, and there was no any definite or fixed law of succession. As a result, on succession issues, these states often came in conflict with each other. So Dupleix realized that we can interfere in these succession disputes. We can give offer to the local rulers that we have skilled European military, we have modern equipments of warfare, we will help you, we will support you, we will give you military support, we will help you in solving your disputes, and gradually we will interfere in the state, okay, we will maintain our army by the expenses of these states, and gradually when we will be familiar, it means at micro level, when you are familiar that what are the developments in that particular state, so in that stage you will be able to establish your dominance gradually. So a time will come when the rulers of these local states could be utilized as puppet rulers, and in this way your presence in that particular state will be validated also. So this needs what? A good diplomatic strategy. And this good diplomatic strategy is working. What is the foundation of this good diplomatic strategy? Why the local rulers will negotiate with you? Because you have a good military. You will help them
giving military support. You will promise that we will give your army European military training. So this is the point. It means a good diplomatic effort plus promises to give military support and help, plus okay, financial manipulation is also one angle that we will do. We will promote trade and commerce in your state. In this way easily you can establish your dominance. Okay, so this will not happen all of a sudden. This will happen, okay, in a gradual way, and for that diplomacy is needed. So Dupleix was the one who first thought that we can do this. Okay, it means that Dupleix thought that French company can be empire builder in India. We can develop, we can make India a French empire. Dupleix was the first who envisioned this, that we can make India a French empire. But finally what we see, that Dupleix was having the ability, Dupleix was having the good diplomatic skill, and Dupleix was also getting initial successes, but Dupleix was not successful in developing French empire in India. The reason was, okay, some structural weaknesses. And what is that structural weaknesses? The structural weakness is the nature of the French company. It was not a completely joint venture company. It was put under strict control of the state. Okay, so there was the limitations of flexibility, there were the limitations of adaptability. Okay, the French company, the administrators of the French company were not free and independent in making decisions, and for financial help they will have to look for the state support, and the state itself was facing a lot of challenges. So the state did not provide adequate support and help when it was needed. So this is the greater limitation. And when Dupleix was doing excellent work in India, he was recalled back by the French authorities, by the French state. So this is the background of this entire story. I hope that GS students or optional students all are familiar with this development. Now we are looking at this question. We cannot write a lot of stuff here in our answer, because here what we see, we have to write answer in 300 words only. Why 300 words? Because it is a 20 marker question. So we don't have much scope to write each and everything, but still we will have to include these dimensions in our answer. Again, I am reading and repeating the question, that it was Dupleix who had first showed the way of intervening in disputes of Indian rulers and thereby acquiring control over vast territory. It was a technique which was later perfected by the English East India Company. Elaborate. Got it? You must know, you must be knowing that who was the subsidiary alliance was the brainchild of, आपको पता है कि subsidiary alliance was the brainchild of Dupleix. And what are the provisions in subsidiary alliance? So when you look at the provisions subsidiary alliance, you will find that, okay, here the same thing applies. Now here I have written the answer in 300 words. So this is introduction part, this is conclusion part, and this is what? Main body. So in exam we don't need to write introduction, main body and conclusion. We can change paragraphs, and examiner can better understand that you have written your answer in the form of intro, main body and conclusion, and there is no any thumb rule that we are going to write introduction in 10 word, 15 word or 20 word. No, according to the need of the question we need to write the introduction and conclusion. Okay, so what is the introduction part? In introduction part, since we are talking about Dupleix, since we are talking about the strategy of Dupleix, okay, so Dupleix's strategy are applied in what circumstances? So the circumstances are post 1707 developments, okay, and post 1707 developments are fragmentation of central authority. In South India, the situations were adequate. There also we find there were different rulers who were in conflict with each other. So this we will write that the political fragmentation of 18th century India followed by the decline of Mughal authority. So here we have talked about the political fragmentation. We have talked about the decline of Mughal authority, created opportunities for European companies to intervene in indigenous politics. So this we have made clear that the political fragmentation and the decline of
Mughal authorities. Okay, created opportunities for the intervention. Now Dupleix, in exam you can skip this complete name Joseph Franco is, because इससे आपके 2 words बढ़ जाएंगे तो हटा देना. Dupleix was the first to systematically exploit this situation by intervening in succession disputes to establish political control. Okay, तो अगर हम ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, फ्रेंच कंपनी दोनों की बात कर रहे हैं, तो इन दोनों में डुप्ले ही वो पहला आदमी था. डुप्ले वाज द फर्स्ट पर्सन जिसने क्या किया, सिस्टमेटिकली एक्सप्लॉइट करना चाहा इस सिचुएशन को, जो लोकल रूलर्स हैं उनके सक्सेशन डिस्प्यूट्स में इंटरवेन करके, बाय इंटरवेनिंग द सक्सेशन डिस्प्यूट्स ऑफ द लोकल रूलर्स. अब देखो, डुप्ले इंटरवीन्ड वेयर, in the succession disputes of the local rulers. So in main body we have to explain, okay, that Dupleix intervened, but where we see these succession disputes. So you all know Anglo-French wars, Carnatic wars. First Anglo-French war, it is also called Carnatic war, Carnatic wars. Second Anglo-French war and third Anglo-French war. So we all are familiar that first and third are the extension of the European wars in India, but the second war is very important. It is second Anglo-French war, or second Anglo-French war or Carnatic war is also qualitatively different. And here we see succession disputes in Hyderabad and Carnatic state. French did what? French supported, okay, Chanda Sahib in Karnataka and Muzaffar Jung in Hyderabad. This topic in second Anglo-French war 1749 to 1754, you all are aware of this development. And here who is using this diplomacy? Dupleix is using this diplomacy, and Dupleix is also getting initial success here. That is an important point. Here आप ऐसे easily याद कर सकते हो, फाइनेंस कमीशन, फाइनेंस मिनिस्टर. तो फ्रेंच सपोर्टेड, सी मीन्स चंदा साहिब, फ्रेंच सपोर्टेड, एम मीन्स मुजफ्फर जंग. So in this way you can easily remember the facts. Now the same point has been written here, that Dupleix's strategy was evident, or it was seen during the Carnatic and Hyderabad conflicts, where he supported rival claimants of power. Okay, it means that British and English both supported rival claimants of power. So Dupleix supported rival claimants of power, Chanda Sahib in Karnataka and Muzaffar Jung in Hyderabad. How Dupleix supported? So by providing military assistance in return for political concessions. He sought to establish French dominance through indirect rule. अब यहाँ पे देखो, मैंने पहले ही बताया था कि डिप्लोमेटिक एफर्ट्स प्लस इस डिप्लोमेटिक एफर्ट, ये जो डिप्लोमेटिक एफर्ट है इसका फाउंडेशन ही क्या है? मिलिट्री सपोर्ट. और ऐसा करके लास्टली आपको क्या करना है? पॉलिटिकल कंट्रोल एस्टैब्लिश करना है, प्लस इसका फाइनेंशियल मैनिपुलेशन, ये भी एक एंगल है. द सेम हैज बीन रिटन हियर कि बाय प्रोवाइडिंग मिलिट्री असिस्टेंस in return for political concessions, these political concessions will give what? Financial gains to the French in India. So Dupleix sought to establish French dominance through indirect rule. Okay, it was the vision of Dupleix that we will bring puppet rulers in these states. Later what we see, British copied this model. In Palasi they did what? Okay, they defeated Sirajuddaulah and brought or introduced what? Puppet rulers. Okay, and later this policy was largely followed by the Britishers. Okay, so now here historian's point of view has also been incorporated. Historian Bipan Chandra, what he writes, that this initiation or this innovative step, or you can say that this innovation of Dupleix marked a decisive shift from commerce to political ambition. So Bipan Chandra writes that we see a change or complete transformation in the pattern of French company. Now the shift, we see a major shift from trade to territorial expansion. Okay, so this has been written here. Bipan Chandra writes that this marked a decisive shift from commerce to political ambition. Now in answer we also have to justify, because question में क्या लिखा है कि later this was perfected by English East India Company, एक टेक्निक which was later by perfected by English East India Company, यानी इस टेक्निक को आगे चल के परफेक्टली
अप्लाई किया किसने? इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने. तो इन मेन बॉडी वी ऑल्सो हैव टू राइट दिस पर्टिकुलर dimension. So here we will write how it was perfected by English East India Company. So look here, the English East India Company refined and institutionalized this technique. So here refined and institutionalized this technique means what? East India Company did what? Later it perfected this technique under leaders like Robert Clive. So here we will definitely give the reference of Robert Clive. Many a times in GS also, in optional also, you can get question where both these two personalities are compared, Robert Clive and Dupleix. So we will definitely mention about Robert Clive. The British successfully replicated this strategy in Bengal. It means the same strategy was replicated in Bengal. Look at the years. Second Anglo-French War, Carnatic War 1749 to 54. और बंगाल में क्या है? बैटल ऑफ प्लासी. व्हाट इज द ईयर? 1757. लुक हियर, सेकेंड एंग्लो फ्रेंच वॉर कब खत्म होता है? 1754 में. तो आगे चल के इसी पॉलिसी को बंगाल में इंप्लीमेंट कर दिया ईस्ट इंडिया कंपनी ने. इनडायरेक्ट रूल स्टैब्लिश कर लिया बंगाल पे. ओके, मोस्ट नोटेबली इन विच बैटल? इन द बैटल ऑफ प्लासी, वेयर इंटरनल डिसेंट वॉज एक्सप्लॉइटेड टू सिक्योर कंट्रोल. दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट. In Battle of Plassey, you all know that British East India Company did what? It got victory in Battle of Plassey with the help of conspiracy and intrigues. There were different stakeholders of power in Bengal rulers' court. Okay, there were merchants, bankers, courtiers, and British East India Company did what? Okay, those who are not happy with Sirajuddaulah, or those who think that we can have better prospect for trade and commerce if we join hands with English East India Company, they will support East India Company. Okay, so they did what? This is called micro analysis of the political situation. कि कहीं पे आप घुस जाओ किसी ऑर्गेनाइजेशन में और पता करो कि कौन कौन से लोग डिससेटिस्फाई है, खुश नहीं है, उसके लिए अपना एक दूत भेज दो और फिर इनको तोड़ के अपनी तरफ लेके चले आओ. द सेम थिंग वाज डन बाय इंग्लिश ईस्ट इंडिया Company. They did what? Internal dissent. There was internal dissent in the court of Nawab Sirajuddaulah, and this was exploited. आपको पता है कि मीर जाफर को अपनी तरफ मिला लिया था, and this was done to secure control over Bengal. And subsequently, आगे चलकर mechanisms such as subsidiary alliance and later the doctrine of lapse transformed ad hoc interventions into a systematic imperial policy. यानी शुरुआत तो यहां से होती है, लेकिन आगे चलकर यही बातें इंस्टीट्यूशनलाइज्ड हो जाती हैं एक पॉलिसी के फॉर्मेट में. लॉर्ड वेलेस्ली के टाइम तक आते आते सब्सिडी अलायंस में, आगे चल के इंस्टीट्यूशनलाइज्ड हो जाती हैं डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स में. तो इन सब का ऑब्जेक्टिव क्या था? इन सब का ऑब्जेक्टिव ही वो था कि उन स्टेट्स पर हमें क्या करना है? इनडायरेक्ट पॉलिटिकल कंट्रोल एस्टैब्लिश करना है. ठीक है, एडॉक interventions into a systematic. ये आगे चलकर क्या बन गया? The same became systematic imperial policy. यानी subsidiary alliance which was introduced by Wellesley, and what Lord Clive did in Plassey, and later whatever was done through this doctrine of lapse policy, each and everything was initiated by Dupleix. It means that it is a very popular statement that subsidiary alliance was the brainchild of Dupleix. So in the same context, we say that subsidiary alliance was the brainchild of Dupleix. Now again, we will mention a historian perspective here. Historians like Irfan Habib link this expansion to the needs of colonial capitalism. Bertenstein emphasizes the enabling role of India's fragmented policy. So Marxist historians say that whatever was happening in India, it was due to the fact that the colonial capitalism, this model was growing popular, it was getting popularity. Okay, so French company, English company, the European powers who were present in Asian countries, each and every country was trying to do the same. So whatever we see in India, whatever is reflected in India, it's part of that colonial capitalism. While Bertenstein emphasizes the enabling role of India's fragmented policy. So Bertenstein give emphasis to this fact that
the political circumstances in India created opportunities for the intervention of European powers. The same which I have written here in introduction, that political fragmentation created opportunities. तो हमने opportunity दिया, ये बात है. Now next point, देखो अब डुप्ले की बात हम कर रहे हैं, तो we will say that yes, he was innovative, he did innovations, but despite his innovations, Duplé failed. Duplé failed. Why he failed? Okay, so there is, you can say that there is no any limitation of his policy. His policies were good, but he failed due to lack of consistent support from France. पहला रीजन, यानी कि the expectation which the French company had with its French government, this expectation was not fulfilled. French state did not give desired help and support. And the second point, financial constraints. It means financial challenges before French company. देखो क्या है, English East India Company did what? English East India Company created its own source of revenue. यानी वो क्या था, एक तरह से सेल्फ जनरेशन वाली बात थी. इन इंडिया बंगाल जीतने के बाद क्या किया, दे एस्टैब्लिश कंट्रोल ओवर रेवेन्यू. So if they are doing some expansion, if they are fighting wars, so the war were financed with the Indian revenues. So they don't have to ask or look outwards to get financial help and support. But French company, वो जो कहते हैं ना कि एक financial source जो था, या because military needs what? Financial help and support. तो French company will always look to French state for this financial help and support. और फ्रेंच कंपनी का कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर भी इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी जैसा नहीं था. ये हेविली डिपेंडेंट थी स्टेट पर, है ना. इट वाज हेविली डिपेंडेंट ऑन द पैटर्नेज ऑफ स्टेट फॉर सब्सिडीज, हेल्प एंड फाइनेंशियल सपोर्ट. और पैसा तो चाहिए ही मिलिट्री एक्सपेंशन के लिए. तो डुप्ले के फेल होने के ये दो सबसे इंपॉर्टेंट रीजन थे. पहला, लैक ऑफ कंसिस्टेंट सपोर्ट फ्रॉम फ्रांस. दूसरा, फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट्स, फाइनेंशियल चैलेंजेस. इन कॉन्ट्रास्ट अगर हम इसके अपोजिट देखें तो ब्रिटिश के पास क्या था, एडवांटेजेस था. ब्रिटिश हैड कंपैरेटिव एडवांटेजेस. वो एडवांटेजेस क्या थे, तो ब्रिटिश प्रोसेस्ड सुपीरियर नेवल पावर, फाइनेंशियल रिसोर्सेज इनके पास थे, पॉलिटिकल बैकिंग एंड सपोर्ट ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट, ये था. ओके, नाउ कंक्लूजन. व्हाइल डुप्ले पायोनियर्ड द टेक्निक ऑफ पॉलिटिकल इंटरवेंशन, ठीक है, Duplé pioneered the technique of political intervention, but it was English East India Company that perfected it in durable instrument of empire building later. So this is the point. So this is what conclusion. Now in this answer, okay, all the demands of the question have been fulfilled. Okay, the historians, you can say, perspective has also been included. Bipan Chandra, Irfan Habib, Bertenstein. Okay. So the demand of the question has been justified completely. So I hope you will read this question, and I hope that you have got good concept clarity on this particular question. So मेरे कहने का मतलब ये है कि whenever we are discussing PYQs, so discussing PYQs does not mean कि हमने आंसर लिया, उसको रट्टा मारा या हमने उसको रीड कर दिया. No, while discussing PYQs हमें थोड़ा थीम पे भी डिस्कस करना चाहिए. Because when we discuss theme, so whatever you have studied in your classrooms, in your foundational lectures, each and everything will be revised. यहाँ पे क्या हो रहा है, आपने क्लास में जो कुछ भी पढ़ा है वो साथ साथ रिवाइज भी होता चला जा रहा है. तो PYQs को पढ़ने का एक पर्पज ये भी होना चाहिए कि हमारे लेक्चर्स भी साथ साथ रिवाइज होते चले जाए. तो इसी मॉडल पे हम डिस्कस कर रहे हैं. दैट्स वाई ये टाइम थोड़ा ज्यादा लग रहा है. ठीक है, इसीलिए आई हैव डिसाइडेड कि हम वीडियोस को 4 क्वेश्चंस हैं इन 1 सेक्शन. तो व्हाट विल डू, वी विल डिसाइड इट इन 4 वीडियोस. ओके, तो इससे आपके लिए पढ़ना भी आसान होगा एंड इट विल बी easier for me to manage time to record the videos. So I hope that you have got a good understanding of this topic. Now we are coming to this question number 2B. तो देखो 2B जो है it is of 20 marks और 20 marks का मतलब क्या है, 300 words. तो word limit भी हमें ध्यान रखना है. देखो जब भी, for example the theme here is revolt of 1857, तो आपके पास तो रिवोल्ट ऑफ 1857 पे बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन है. जीएस वाले बच्चों के पास भी बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन. यू आर ऑल्सो हैव अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन दिस टॉपिक रिवोल्ट ऑफ 1857. बट इफ द क्वेश्चन इज रिलेटेड टू दिस थीम, इट डज नॉट मीन दैट हम
वो सब कुछ लिख देंगे जो हमें आता है, नहीं. We will write only what has been demanded in the question, and for that it is very important to decode the question. It is very important to deconstruct the demand of the question. पहली चीज है कि इसके कंपोनेंट्स को, क्वेश्चन के कंपोनेंट्स को हमें समझना होगा. जब हम क्वेश्चन के कंपोनेंट्स को समझेंगे तब जाकर आंसर लिखना हमारे लिए क्या होगा, आसान होगा. तो सबसे जरूरी चीज है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज व्हाट, सो वी शुड अंडरस्टैंड और वी शुड डेवलप अ गुड कमांड ओवर द components of the question. Okay, so let's look at the question first. So the question is, for long, एक लंबे समय तक, the revolt of 1857 has been mistaken to be a mere mutiny of Indian sepoys in the Bengal army. तो क्या कह रहा है, for long यानी लंबे समय तक, the revolt of 1857 के रिवोल्ट को has been mistaken, यहां पे ये भी लिखा हुआ है, समझा जाता रहा a mere mutiny, केवल एक छोटा विद्रोह. ठीक है, कि लंबे समय तक क्या समझा जाता रहा रिवोल्ट ऑफ 1857 को, कि इंडियन सेपॉइज का भारतीय सिपाहियों द्वारा बंगाल की आर्मी में किया गया एक छोटा सा गदर था या रिवोल्ट था, डिस्टर्बेंस था, विद्रोह था. लंबे समय तक यह समझा जाता रहा. अब देखो, यू ऑल नो दिस, कि लंबे समय तक ऐसा कौन समझाता रहा या समझता रहा, तो कॉलोनियल हिस्टोरियंस. क्योंकि कॉलोनियल हिस्टोरियंस की कोशिश हमेशा से ये थी, द कॉलोनियल हिस्टोरियंस वर ऑलवेज ट्राइंग टू डिमीन द ग्लोरी, सिग्निफिकेंस एंड इंपैक्ट ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857. वो रिवोल्ट ऑफ 1857 की ग्लोरी, सिग्निफिकेंस और इंपैक्ट को डिमीन करना चाहते थे, कम करके दिखाना चाहते थे. क्योंकि अगर कॉलोनियल हिस्टोरियंस रिवोल्ट ऑफ 1857 को बहुत बढ़ा चढ़ा के ग्लैमराइज करेंगे, इससे कहीं ना कहीं कॉलोनियल स्ट्रक्चर जो है उसकी वैलिडिटी, उसकी वैधता पर प्रश्न चिन्ह लग जाएगा, वो कटघरे में खड़ी हो जाएगी. सो इफ कॉलोनियल हिस्टोरियंस विल नॉट डिमीन दिस रिवोल्ट ऑफ 1857, okay, so what will happen, it will ultimately raise a question mark on the validation of colonial authority in India. So for colonial historians, in order to provide validity to the colonial presence, it was essential to demean, okay, the glory, the impact, okay, the significance of revolt of 1857. And for this reason, for a very long time, okay, वो ये दिखाने की कोशिश करते रहे. साथ ही साथ वो ये भी दिखाने की कोशिश करते रहे कि रिवोल्ट ऑफ 1857 क्या था, म्यूटिनी ऑफ द इंडियन सेपॉइज, यानी इसमें हिंदुस्तान के अलग अलग वर्गों के लोगों ने सपोर्ट नहीं किया था, ये तो केवल सिपाहियों से जुड़ा हुआ कोई मामला था. तो इससे क्या होता है, आपने इसका जो सोशल बेस है इस रिवोल्ट का, उसको कम करके दिखाया. ठीक है, so for a long time what is happening, कॉलोनियल हिस्टोरियंस ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं ये केवल इंडियन सेपॉइज से जुड़ा हुआ मामला था. और यहां पे देखो रीजनल लिमिटेशंस, वो क्या दिखा रहे हैं, बंगाल की आर्मी से जुड़ा हुआ मामला था. सो इसका मतलब ये हो गया वो डिमीन करना चाह रहे हैं. हाउएवर इट्स कॉजेज नीड टू बी सर्च्ड फॉर नॉट ओनली इन द डिससैटिस्फैक्शन ऑफ द आर्मी बट इन अ लॉन्ग ड्रॉन प्रोसेस ऑफ फंडामेंटल सोशल एंड इकोनॉमिक चेंज दैट अपसेट द पीजेंट कम्युनिटीज. इसके बाद का पार्ट कह रहा है कि फिर भी द कॉजेज ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857 नीड टू बी सर्च्ड फॉर नॉट ओनली इन द डिससैटिस्फैक्शन ऑफ द आर्मी. यानी रिवोल्ट ऑफ 1857 का कारण क्या था, यह सर्च करने के लिए हमें सिर्फ आर्मी को नहीं देखना है. आर्मी तो उसका एक पहलू था, ये इंडियन सेपॉइज उसके एक पहलू है, बट इसके बियॉन्ड जाके हमें देखने की जरूरत है कि कॉलोनियल पॉलिसीज की वजह से, ठीक है, जो लंबे समय में फंडामेंटल एंड सोशल इकोनॉमिक चेंजेस आए, इसने पीजेंट कम्युनिटीज को, कृषक समुदायों को अपसेट किया, उनको डिससेटिस्फाई किया, नाराज किया, और यह भी उसका एक बहुत बड़ा कारण था, मेजर कारण था डिस्कस. यानी कि द क्वेश्चन इज इंडिकेटिंग दैट, ओके, यहां पे क्वेश्चन को समझना है आपको कि यहां पे आपको हिस्टोरिकल डिबेट्स और पर्सपेक्टिव्स, दिस यू विल हैव टू इंक्लूड इन योर आंसर बिकॉज इट्स टॉकिंग अबाउट कॉलोनियल हिस्टोरियोग्राफी. लंबे समय तक कॉलोनियल हिस्टोरियोग्राफी ने रिवोल्ट ऑफ 1857 को मेयर और सेपॉय म्यूटिनी ही दिखलाया.
साथ ही साथ दिखलाया कि ये केवल कहां तक कंफाइन रहा, बंगाल तक कंफाइन रहा। बट द मेन कॉजेज जो हैं, मेन कॉजेज ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857, ठीक है, वो क्या है? सोशियो इकोनॉमिक जो स्ट्रक्चरल क्राइसिस है इससे जुड़ा हुआ है। जो सोशियो इकोनॉमिक चेंज के लिए कॉलोनियल स्ट्रक्चर में जो पॉलिसीज इंट्रोड्यूस की गई, उन पॉलिसीज ने जो पीजेंट कम्युनिटीज हैं इनको डीपली अफेक्ट किया, गहरे स्तर तक प्रभावित किया, और इसका नतीजा था रिवोल्ट ऑफ 1857। सो दिस इज द डिमांड ऑफ क्वेश्चन, ठीक है। आई होप यू हैव गॉट द आइडिया ऑफ द क्वेश्चन। और क्वेश्चन को जब आप पढ़ते हो तो इस हिसाब से पढ़ो। देखो, क्वेश्चन लाइन बाय लाइन, वर्ड टू वर्ड आपको याद नहीं होना चाहिए, बट क्वेश्चन का एक ओवरऑल थीम आपके दिमाग में फिट हो जाना चाहिए कि हाँ, ये थीम से जुड़ा हुआ क्वेश्चन हमारे एग्जाम में कभी पूछा गया है। सो दिस इज द मेथड ऑफ रिवाइजिंग PYQs, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए, सो लेट्स डिस्कस द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, चलिए आंसर को देखते हैं। तो देखो, आंसर को देखने से पहले सबसे पहले तो जो मैंने आपको बताया कि क्या आप भी ये मानते हैं कि रिवोल्ट ऑफ 1857 वाज ओनली अ सेपॉय म्यूटिनी? रिवोल्ट ऑफ 1857 वाज मेयरली अ सेपॉय म्यूटिनी? नहीं, हम ऐसा नहीं मानते हैं। क्या आप भी ये मानते हैं कि रिवोल्ट ऑफ 1857 वाज रिलेटेड टू द कॉज एंड डिससैटिस्फैक्शन ऑफ इंडियन सेपॉयज ओनली? क्या आप ऐसा मानते हैं? नहीं, हम ऐसा नहीं मानते हैं। क्या आप भी ऐसा मानते हैं कि रिवोल्ट ऑफ 1857, ओके, द इंपैक्ट ऑफ दिस रिवोल्ट ऑफ 1857 वाज लिमिटेड ओनली टू द बंगाल आर्मी? क्या इसका इंपैक्ट, इसका प्रभाव केवल बंगाल आर्मी तक था? क्या आप ऐसा मानते हैं? द आंसर इज नो, ठीक है, हम ऐसा नहीं मानते। यानी कि जो रिवोल्ट ऑफ 1857 है, रिवोल्ट ऑफ 1857 इंडियन सेपॉयज से जुड़ा हुआ है, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। दूसरी चीज, हम कह सकते हैं कि मिलिट्री कॉजेज इसके हैं या सेपॉयज डिससैटिस्फैक्शन एक इश्यू है। दिस इज ट्रू, दिस इज नॉट इनकरेक्ट, बट दिस इज व्हाट? दिस इज द इमीडिएट कॉज ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857। ये क्या है? रिवोल्ट ऑफ 1857 का इमीडिएट कॉज है। तो रिवोल्ट ऑफ 1857 का मेन कॉज क्या है? तो मेन कॉज क्या है? तो देखो, मेन कॉज इज स्ट्रक्चरल चेंजेस दैट वेयर इंट्रोड्यूस्ड बाय कॉलोनियल अथॉरिटी इन इंडिया, ठीक है। इंडिया में कॉलोनियल अथॉरिटी ने जो स्ट्रक्चरल चेंजेस इंट्रोड्यूस किए, ये मेन कॉज है। और वो स्ट्रक्चरल चेंज में क्या क्या किया? तो देखो, ब्रिटिश डिड व्हाट? दे एस्टैब्लिश्ड कंट्रोल ओवर रेवेन्यूज, रेवेन्यू पे कंट्रोल किया। तो यहां पे क्या था? मैक्सिमाइजेशन ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन, ठीक है। रेवेन्यू कलेक्शन जितना ज्यादा हम बढ़ा लें, इसके लिए क्या किया? आर्बिट्रेरी मीन्स, मेथड्स, ठीक है, ये सब आपको पता है। दे इंट्रोड्यूस्ड डिफरेंट लैंड रेवेन्यू कलेक्शन मॉडल्स, वी ऑल नो, परमानेंट सिस्टम ऑफ सेटलमेंट, रैयतवाड़ी सिस्टम ऑफ सेटलमेंट, महालवाड़ी सिस्टम ऑफ सेटलमेंट, बट इसमें से कोई भी पीजेंट फ्रेंडली नहीं था। अल्टीमेट बर्डन वाज ऑन द शोल्डर ऑफ द पीजेंट्स, ठीक है, एंड पीजेंट्स वेर एक्सप्लॉइटेड। पूरा आपने अपनी क्लास में पढ़ा होगा कि पीजेंट्स कैसे एक डेट ट्रैप में फंस गए, ठीक है, विशियस साइकिल ऑफ डेट में फंस गए। तीसरी चीज, आपको पता है कि रेवेन्यू इज द मेन सोर्स, और रेवेन्यू में भी एग्रीकल्चरल रेवेन्यू was playing an important role. So gradually, in order to maximize this revenue from agriculture, gradually they did what? Okay, they also promoted commercialization of agriculture. इससे भी अपने इनकम को बढ़ाने की कोशिश की। कॉमर्शियल ऑफ एग्रीकल्चर के बड़े ही, मतलब आप कह सकते हो कि रिपरकशंस जो हैं उसके जो इम्पैक्ट हैं लॉन्ग टर्म में, वो बड़े ही हार्मफुल रहे इंडिया के लिए। कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, इसने तो फेमाइंस और ड्रॉट्स को भी बढ़ाने में, ठीक है, अपना कंट्रीब्यूशन दिया, आपको पता होगा। फिर इससे क्या हुआ? इम्पोवरिशमेंट ऑफ पीजेंट्स, किसान और गरीब होते चले गए। बट इससे अल्टीमेटली किसको बेनिफिट हो रहा था? ब्रिटिशर्स वेर बेनिफिटेड बाय दिस एंटायर प्रोसेस, ठीक है। इसके बाद क्या था? आपको पता है कि जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री है, ये भी डिक्लाइन हो गई। और हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री एक तरह से जो एग्रेरियन कम्युनिटी है, कृषक समुदाय है,
इसके लिए ये एक सपोर्टिंग इंडस्ट्री होती है, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। तो यहाँ पे हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री वाज आल्सो अफेक्टेड, यानी कि जो ट्रेडिशनल सोसाइटी थी, ट्रेडिशनल सोसाइटी में जो भी कह सकते हो कि जो हमारे ट्रेडिशनल जो भी स्ट्रक्चर्स थे उनको धीरे धीरे कॉलोनियल पॉलिसीज ने क्या किया, डिग्रेड किया, डिकंस्ट्रक्ट किया और उनको इस तरह से डिजाइन किया जिससे कि वो कॉलोनियल इंटरेस्ट्स को फुलफिल कर सकें ज्यादा इफेक्टिवली। Okay, so they designed each and everything in our society so that they could fulfill the colonial interest in its effective manner. So ultimately, we know that the ultimate burden will go on agrarian community. Agrarian community. So agrarian distress is one of the most important factor. Peasant dissatisfaction is one of the most important factor for revolt of 1857. And we all know that sepoys are what? ठीक है, सिपाही कौन है, सिपाही कौन लोग है, ठीक है, दे आर द पीजेंट्स इन यूनिफॉर्म। वो भी तो किसान ही है, बस उन्होंने सिपाही की नौकरी कर ली है, उन्होंने वर्दी, उनके घर में तो लोग किसानी खेती करते हैं, तो दे आर ऑल्सो द पीजेंट इन यूनिफॉर्म। और इसके साथ ही साथ क्या था कि जो कंपनी है, ईस्ट इंडिया कंपनी, कंपनी को सपोर्ट करने के लिए यहां पे देयर वाज अ क्लास ऑफ इंडियंस, ओके, who were benefited by the presence of East India Company. They were acting like a middleman, and this class is what? Zamindars, money lenders, who were supporting the presence of company and who were getting benefits by the presence of company. तो इन ये जो मनी लेंडर्स हैं, साहूकार्स हैं या फिर इंटरमीडियरीज हैं, ट्राइबल एरियाज में चले गए तो इनको डिकूज कहा गया। दे ऑल्सो क्रिएटेड एडिशनल चैलेंजेस फॉर द पीजेंट कम्युनिटी। So this peasant distress is one of the main important factor. मेरी बात समझ गए कि सेपॉइज कंसर्न तो है, बट सेपॉइज कंसर्न क्या है? दिस इज द इमीडिएट रीजन, ठीक है। मेन रीजन की जब हम बात करेंगे तो पीजेंट डिस्ट्रेस ही होगा, ये बात आपको समझनी है। मेन रीजन हमेशा क्या होगा? पीजेंट डिस्ट्रेस होगा। तो देखो, इन हिस्टोरियोग्राफी देयर इज अ डिबेट। कॉलोनियल हिस्टोरियंस विल ट्राई टू डिमीन द impact of or significance or glory of revolt of 1857. For example, John Seeley will say that revolt of 1857 was mere a sepoy mutiny. John Seeley कहेगा कि ये तो केवल एक sepoy mutiny था. But the nationalist historians like V.D. Savarkar will say that it was the first war of Indian independence. मेरी बात समझ गए? मार्क्सिस्ट हिस्टोरियन क्या कहेंगे, है ना? मार्क्सिस्ट हिस्टोरियन, यानी यहां पे जो क्वेश्चन में जो बात पूछी गई है कि सेपॉय म्यूटिनी और यहां पे पीजेंट कम्युनिटी और एग्रेरियन डिस्ट्रेस की बात की गई है, ये मार्क्सिस्ट हिस्टोरियंस का पक्ष है कि जो रिवोल्ट ऑफ 1857 है, इसके पीछे जो मेन रीजन है वो पीजेंट इंसर्जेंसी है। और यहां पे जो पीजेंट कॉन्शियसनेस है ये ऑटोनोमस कॉन्शियसनेस है, पीजेंट सामने आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह से इसमें तमाम डिबेट्स भी है कि म्यूटिनी था कि नेशनल वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि रिवोल्ट क्या है, रेबेलियन क्या है, मूवमेंट क्या है, ये अगले क्वेश्चन में मैं आपको बताऊंगा। रिवोल्ट ऑफ 1857 क्या ये रिबेलियन इसको हम कह सकते हैं? डज इट क्वालिफाई टू बी अ रिबेलियन? ये अगले क्वेश्चन में बता दूंगा, क्योंकि वो क्वेश्चन भी जुड़ा हुआ है। वहां पे एक वर्ड यूज किया गया संथाल रिबेलियन, यहाँ पे हम रिवोल्ट ऑफ 1857 कह रहे हैं। सो द बेसिक डिफरेंस आई विल टेल यू लेटर, ओके। तो ये बात आप समझ गए। सो दिस इज द बेसिक आइडिया, ओके। नाउ वी हैव टू डिस्कस द आंसर। तो आंसर में ये सारी चीजें आनी चाहिए, ठीक है। नाउ देखते हैं हमारा आंसर कितना जस्टिफाई कर पाता है क्वेश्चन को। सो आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट इन आंसर्स व्हाट वी हैव टू डू, हमें क्या करना है कि इन आंसर हमें इस बात का ध्यान रखना है दैट वी आर नॉट, we will write introduction, we will write main body, we will write conclusion, but in answer we will mention it nowhere, ठीक है। For example, in this answer format you will see that this part is the intro part, this part is the conclusion part, and this part is the main body part of your answer, but इसको हमने आंसर में कहीं मेंशन नहीं किया। Now what is the introduction? तो देखो, इंट्रोडक्शन में जो क्वेश्चन पूछा गया है उस क्वेश्चन में जो बातें भी पूछी गई हैं उसी के रेफरेंस को बेस बनाते हैं अपने इंट्रोडक्शन के लिए। सो व्हाट इज द इंट्रोडक्शन? द रिवोल्ट ऑफ 1857 हैज बीन इंटरप्रेटेड
यानी इंटरप्रिटेशंस की बात की गई है इन कॉलोनियल हिस्टोरियोग्राफी एज मेयर सेपॉय म्यूटिनी। तो यहां हमने क्लियर कर दिया कि सेपॉय म्यूटिनी ये जो इंटरप्रिटेशन है, ये इंटरप्रिटेशन कहां से आता है? कॉलोनियल हिस्टोरियोग्राफी से, और ये इंटरप्रिटेशन बड़े लंबे समय से चला आ रहा था। द रिवोल्ट ऑफ 1857 हैज लॉन्ग बीन इंटरप्रेटेड इन कॉलोनियल हिस्टोरियोग्राफी एज अ मेयर सेपॉय म्यूटिनी। और दूसरा पार्ट क्या है? कन्फाइंड टू द बंगाल आर्मी, ये भी कॉलोनियल इंटरप्रिटेशन है। हाउएवर सच अ व्यू ओवरलुक्स, ऐसा विचार अनदेखी करता है द डीपर सोशल एंड इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन दैट जनरेटेड वाइडस्प्रेड डिस्कंटेंट पार्टिकुलरली अमॉन्ग द पीजेंट्री। तो क्वेश्चन में ज्यादा फोकस पीजेंट्री पे है, तो यहां पे हमने भी क्या किया? ज्यादा फोकस कहां कर दिया? पीजेंट्री क्लास पे। दैट दिस व्यू ओवरलुक्स, यह अनदेखी कर देता है विचार। किस बात की अनदेखी कर देता है? तो अंडर दिस कॉलोनियल स्ट्रक्चर, अंडर दिस कॉलोनियल रूल देयर वेर डीपर सोशियो एंड इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशंस। ठीक है, तो वो जो सोशियो इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशंस हो रहे थे, जिनकी वजह से लोगों में असंतोष, डिसकंटेंट बढ़ता जा रहा था, खास तौर से पार्टिकुलरली पीजेंट्री क्लास में डिसकंटेंट बढ़ता जा रहा था, ये उसी की क्या करता है? अनदेखी करता है। नाउ विल एक्सप्लेन। ठीक है, तो सबसे पहले हम इमीडिएट कॉज की बात करेंगे। डेफिनेटली वी विल टॉक अबाउट द इमीडिएट कॉज। तो इमीडिएट कॉज इज रिलेटेड टू द grievances of sepoy's grievances. So we'll talk about this, that undoubtedly military grievances played a crucial role. Issues, अब military grievances में क्या क्या था? तो देखो, issues like introduction of grease cartridges, paying disparities and service conditions triggered immediate rebellion among sepoys. Yet अब यहां पे देखो historians perspective, the historians like Irfan Habib argue these factors alone cannot explain the scale and intensity of the uprising. हमने मिलिट्री ग्रेवेंसेस की बात कर दी, उसमें एक दो पॉइंट्स भी बता दिए कि मिलिट्री ग्रेवेंस का मतलब क्या है, कौन कौन से इश्यूज हैं। तो इश्यूज क्या क्या है? इंट्रोडक्शन ऑफ ग्रीस कार्ट्रिजेस है, और क्या है? पे डिस्पैरिटीज, ये आपको पता है। सर्विस कंडीशंस में भी डिस्पैरिटीज थी, तो इससे किसानों का गुस्सा बढ़ा। बट इरफान हबीब कह रहे हैं कि केवल ये फैक्टर इतने बड़े अपराइजिंग को जस्टिफाई नहीं करते, इसके अलावा और भी कुछ कारण रहे हैं। तो इरफान हबीब इज अ मार्क्सिस्ट हिस्टोरियन। तो इरफान हबीब ये मुद्दे को कहां लेके जाएंगे? पीजेंट डिससेटिस्फेक्शन और एग्रेरियन डिस्ट्रेस पे लेके जाएंगे। और यही बात तो हमारे क्वेश्चन में पूछी गई है। पीजेंट डिससेटिस्फेक्शन, एग्रेरियन डिस्ट्रेस और एग्रेरियन क्राइसिस। सो इन द सेकेंड पार्ट हियर वी विल डिस्कस द सेम, peasant dissatisfaction, agrarian distress or agrarian crisis. So here I have written that the roots of the revolt lay in the agrarian crisis. यानी कि असली कारण जो था इस रिवोल्ट का वो एग्रेरियन क्राइसिस था। अच्छा, एग्रेरियन क्राइसिस आया कैसे? सो इट वाज क्रिएटेड बाय कॉलोनियल पॉलिसीज। अब उसमें क्या क्या थी कॉलोनियल पॉलिसीज के कंपोनेंट्स क्या थे? व्हाट वर द कंपोनेंट्स? तो हैवी लैंड रेवेन्यू डिमांड्स, द इंट्रोडक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट्स, and the rise of oppressive landlords and money lenders disrupted traditional rural structure. इसने ट्रेडिशनल रूरल स्ट्रक्चर को क्या कर दिया? डिसरप्ट कर दिया। लैंड became a sellable commodity. Now the peasant were in a debt trap, we all know. Okay, the next important point, in regions like Awadh, annexation and revenue exploitation led to the widespread peasant unrest. This explains why peasants actively supported the rebel, transforming a military mutiny into a broader uprising. तो ये रीजन था कि जो पीजेंट्स हैं, इनको तुरंत सपोर्ट करने के लिए बड़ी संख्या में कौन सामने आ गए? एग्रीकल्चरिस्ट या पीजेंट्स आ गए। सॉरी, सोल्जर्स को सपोर्ट करने के लिए कौन आ गए? पीजेंट्स आ गए। तो इससे क्या हुआ? पहले सोल्जर्स ने स्टार्ट किया, सोल्जर्स इनिशिएटेड, बट लेटर दे वर सपोर्टेड बाय डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीजेंट्स। तो इसने क्या किया कि ये जो रिवोल्ट है, इसके सोशल बेस को एक्सटेंड कर दिया। ठीक है, फिर ये क्या रहा? केवल और केवल मिलिट्री कैंटोनमेंट एरियाज तक ही लिमिटेड नहीं रहा। सम फैक्टर्स एग्रेवेटेड द सिचुएशन। और वो फैक्टर्स कौन है? विच आर द फैक्टर्स विच एग्रेवेटेड द सिचुएशन? तो देखो, द फियर ऑफ रिलीजियस इंटरफेरेंस, तो इसमें जो रिलीजियस और सेमी रिलीजियस क्लास है ये भी शामिल हो जाएगा।
एंड ब्रिटिश अटेम्प्टिंग टू इंट्रोड्यूस सोशल रिफॉर्म्स, लोगों को लगा कि ये बाहरी लोग हैं, विदेशी हैं, और ये सोशल रिफॉर्म्स लाके हमारी जो कल्चरल पॉलिसी है उसमें इंटरफेयर करने की कोशिश कर रहे हैं. सो दिस ऑल्सो क्रिएटेड अ सेंस ऑफ कल्चरल थ्रेट. इससे लोगों को एक कल्चरल थ्रेट, सांस्कृतिक खतरा भी उत्पन्न हुआ. एंड दिस यूनाइटेड डिफरेंट सेक्शंस अगेंस्ट कॉलोनियल रूल. अब इसमें वैसे भी लोग आ गए, ऑर्थोडॉक्स इंडियंस, जिनको ये लगता था कि ब्रिटिश अगर सोशो रिलीजियस रिफॉर्म्स के लिए पॉलिसी ला रहे हैं तो वो पॉलिसी कहीं ना कहीं हमारे कल्चर में अनड्यू इंटरफेरेंस जैसा है. जैसे आप रिवोल्ट ऑफ 1857 के पहले ठीक देखो, 1856 विडो रिमैरेज प्रोमोशन एक्ट है, 1829 कस्टम ऑफ सती एबॉलिशन एक्ट, विडो रिमैरेज प्रोमोशन एक्ट. तो जब ऐसा हुआ तो जो ऑर्थोडॉक्स इंडियंस है दे विल ऑल्सो सपोर्ट दिस रिवोल्ट ऑफ 1857. उनको लग रहा है अंग्रेज हमारे लिए एक कल्चरल थ्रेट की तरह है, हमारी संस्कृति के सामने खतरा उत्पन्न कर रहा है. सो दे ऑल्सो सपोर्टेड. तो यहाँ पे इसका जो सोशल बेस है इस रिवोल्ट का, इट फर्दर वाइडेंड. अब यहाँ पे देखो हिस्टोरियंस पर्सपेक्टिव मैंने दोबारा इंक्लूड किया है. व्हाट इज द हिस्टोरियंस पर्सपेक्टिव? लेट्स सी. सम हिस्टोरियंस लाइक रंजीत गुहा एम्फेसाइजेस द ऑटोनोमस रोल ऑफ पीजेंट्स. हमको पता है कि जो दैट द रिवोल्ट वाज नॉट मेयरली एन एक्सटेंशन ऑफ एलीट और मिलिट्री सेक्शन. देखो सबल्टन हिस्टोरियंस सबल्टन ग्रुप्स के रोल को ओवर एम्फेसाइज करते हैं. तो स्वाभाविक सी बात है कि रंजीत गुहा विल से द ऑटोनोमस रोल ऑफ पीजेंट्स. इनका कहना था कि पीजेंट्स का ऑटोनोमस रोल था. हिस्ट्री राइटिंग में क्या किया गया है कि पीजेंट के ऑक्सिलरी रोल को दिखलाया गया, मेन रोल सेपॉइस को या एलीट क्लास का दिखा दिया गया, है ना. तो सबल्टन्स फोकस ऑन द सबल्टन ग्रुप्स. विच आर द सबल्टन ग्रुप्स? पीजेंट्स, जो फ्रॉम बिलो ग्रुप है. तो इनका कहना है कि द प्रीवियस हिस्ट्री राइटिंग है डिड व्हाट, मिलिट्री को या एलीट लीडरशिप को टॉप पे रखा है और पीजेंट सपोर्ट को उसने ऑक्सिलरी बना दिया. सबल्टन हिस्ट्री कहता है नहीं, पीजेंट सपोर्ट क्या था, मेन था, या ऑटोनोमस था, बाकी सारी चीजें ऑक्सिलरी हो सकती हैं. ठीक है. तो एक हमने सबल्टन अप्रोच भी यहां इंक्लूड कर दिया. देखो जहां पे रिवोल्ट और रिबेलियंस से रिलेटेड क्वेश्चन हो वहां पे सबल्टन हिस्टोरियोग्राफी के अप्रोच को भी एक लाइन में कहीं इंक्लूड आपको कर देना है. बहुत ज्यादा ओवर एक्सप्लेन नहीं करना है, राइट. हाउ द मूवमेंट लैक्ड. अब यहां पे हमने क्या बता दिया, देखो लिमिटेशंस भी बताने हैं. बिकॉज अ गुड एनालिटिकल आंसर और a critical answer is the one which also incorporates what alternative viewpoint, which also incorporates limitations of that particular development. So limitation क्या है? The movement lacked unified leadership, the movement lacked unified coordination and it limited its national character. ठीक है. तो ये नेशनल रहा है ना, यानी कि ये रिवोल्ट से ज्यादा था और फर्स्ट वॉर ऑफ नेशनल इंडिपेंडेंस से थोड़ा कम था. ये बिपिन चंद्र का स्टेटमेंट है और बड़ा बढ़िया है कि रिवोल्ट ऑफ 1857 वाज मोर देन व्हाट द रिवोल्ट और सेपॉय म्यूटिनी, बट इट वाज लेस देन द फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस. ये उनका कहना है. उसके रीजन यही है कि इन लिमिटेशंस की वजह से हम नहीं कह सकते. दूसरी चीज, इस रिवोल्ट का एक जो ऑब्जेक्टिव था वो था टू रीइंस्टेट मुगल एम्पायर इन इंडिया, विच इज लाइक again going back to the medieval system. So this is not progressive. तो according to बिपिन चंद्रा this is a serious limitation of this revolt कि हम पुरानी व्यवस्था की तरफ फिर वापस जा रहे हैं. मिडिवल एज में जो मुगल अथॉरिटेरियन सिस्टम में मुगल एम्पायर है उसको वापस लाने की रिवोल्ट बात कर रहा था. तो इसको फर्स्ट नेशनल वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कहना पूरी तरह से इसको जस्टिफाई नहीं करता है. तो हालांकि इतनी सारी चीजें हम नहीं लिखेंगे, मैंने इसलिए बताया कि थोड़ा आपका नॉलेज यहाँ पे बढ़े, क्योंकि क्वेश्चन डिस्कस करने का मतलब ही है. लास्ट में जो इसका कंक्लूजन है वो ये होगा कि रिवोल्ट ऑफ 1857 कैन नॉट बी ओनली रिड्यूस टू अ सेपॉय म्यूटिनी. इसको केवल सेपॉय म्यूटिनी कहना ठीक नहीं है. इट वॉज अ कॉम्प्लेक्स अपराइजिंग एंड इट द कॉम्प्लेक्स अपराइजिंग रूटेड इन सोशियो इकोनॉमिक चेंजेस दैट डीपली अफेक्टेड पीजेंट कम्युनिटीज. ठीक है. ये कॉम्प्लेक्स अपराइजिंग था जो सोशियो इकोनॉमिक चेंजेस से जुड़ा हुआ है और ये क्या है, डीपली अफेक्टेड पीजेंट कम्युनिटीज, जिसने गहरे स्तर पर किसानों को प्रभावित किया. तो इस क्वेश्चन में आंसर में अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमने लगभग सारी चीजें इंक्लूड कर दी. हमने इमीडिएट रीजन के बारे में भी बताया, हमने पीजेंट डिस्ट्रेस, पीजेंट रोल, इन सब के बारे में भी डिटेल से बताया, हिस्टोरियन ओपिनियंस भी बता दिए,
कुछ लिमिटेशंस भी बता दिए, और साथ ही साथ वी हैव आल्सो स्ट्रिक्टली फॉलोड दिस वर्ड लिमिट 300 वर्ड्स. सो इन दिस वे, ओके, अब आप इस आंसर को पढ़ेंगे और फिर बताएंगे कि कितना जस्टिफाई किया हमने इस आंसर में, इस क्वेश्चन की डिमांड को, हाउ मच वी हैव जस्टिफाइड. सो आई होप दैट यू हैव गॉट द आइडिया, ओके, दैट हाउ मच वी हैव जस्टिफाइड. हेलो, हाँ जी, हाँ बताए, हाँ got it. This is the point. Now we are moving ahead to question number 3. So this is question number 2C. तो आज हमें question number 2 के ये जो 3 पार्ट हैं इनको डिस्कस करना था. So now this is a 10 मार्क का क्वेश्चन, ये ध्यान रखना आपको, 10 मार्क का क्वेश्चन, यानी कि the word limit is 150 words. बट यहाँ पे मैं आपको कुछ चीजें बताऊंगा, बिकॉज मेनी टाइम्स द स्टूडेंट्स कम टू मी एंड दे से कि जब भी क्वेश्चन रिवोल्ट और रिबेलियन से पूछा जाता है, सो इट बिकेम अ लिटिल बिट मोर चैलेंजिंग फॉर देम टू राइट द आंसर. ठीक है, आंसर लिखना थोड़ा ज्यादा चैलेंजिंग हो जाता है. तो देखो, जहां पे भी ऐसे टॉपिक से क्वेश्चंस होंगे वहां मैं थोड़ा थीम एनालिसिस करते हुए थोड़ा ओवर एक्सटेंशन, थोड़ा डिटेल में जाके बताऊंगा कि आपकी ये चैलेंज हमेशा के लिए खत्म हो जाए कि रिवोल्ट और रिबेलियन से जुड़े हुए क्वेश्चंस अगर आपसे पूछे जाए, इफ यू आर आस्क्ड टू राइट क्वेश्चंस ऑन रिवोल्ट्स एंड रिबेलियंस, ओके, सो यू कुड सिंपली राइट द आंसर. ठीक है, बिना परेशान हुए आप उसके आंसर को लिख सकते हो. अब देखो क्या है, क्वेश्चन इटसेल्फ इज सेइंग डू यू फील दैट, डू यू फील, ये आपका खुद का ओपिनियन, इंडिविजुअल ओपिनियन, बट हिस्ट्री में हमारा इंडिविजुअल ओपिनियन कुछ नहीं होता है. जो बैलेंस्ड हिस्टोरिकल इनसाइट्स है वही आपको लिखना है, बैलेंस्ड हिस्टोरिकल इनसाइट्स. सो यू मस्ट बी फैमिलियर विथ व्हाट आर द डिबेट्स, देन यू विल बी इन अ position to write answer about what is the balanced historical insight. The question is, do you feel that Santhal Hul, Santhal Hul rebellion mat कहना, because Hul word means rebellion. Santhal Hul, Hul word itself means what? Rebellion. And that is why UPSC is very cautious. They use words or keywords in a very careful and attentive manner. That's why I ask students to read questions again and again. So here Santhal Hul के बाद ब्रैकेट में लिखा हुआ है rebellion, because Hul means rebellion. Santhal Hul, when I say Santhal Hul, it means Santhal rebellion. Okay, ऐसा नहीं कहना है कि Santhal Hul rebellion, नहीं, 2 बार हो जाएगा. Santhal rebellion, rebellion, ये बिल्कुल ऐसे बोलने जैसा है, repetition. So Santhal Hul means Santhal rebellion. अब यहाँ पे UPSC ने एक वर्ड मेंशन किया, rebellion. ईयर क्या है? 1855-56 was the most effective tribal movement. अब यहां पे क्या यूज कर लिया वर्ड? ट्राइबल मूवमेंट इन प्री 1857 इंडिया. ठीक है, इस पे आपको डू यू फील, इस पे आपको अपना ओपिनियन देना है. इट मींस अपना ओपिनियन का मतलब ये है कि क्रिटिकली हमें जस्टिफाई करना है इस चीज को. तो सबसे पहले तो देखो, केयरफुल सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स. जैसे 2-3 वर्ड्स मैं आपको बताऊं, ठीक है, और वहां पे बच्चों को कंफ्यूजन भी होता है, तो उस कंफ्यूजन से थोड़ा सा बच सकोगे. जैसे एक वर्ड है रिवोल्ट और दूसरा वर्ड क्या है? रिबेलियन. एक वर्ड है मूवमेंट, मूवमेंट, और एक और कंफ्यूजन हमारे सामने है कि रिवोल्ट ऑफ 1857 को हम कहां प्लेस करें, वेयर टू प्लेस रिवोल्ट ऑफ 1857. ये पहले वाले क्वेश्चन से भी थोड़ा जोड़ के बता दे रहा हूं. क्वेश्चन के आंसर पे हम आएंगे, बट फर्स्ट लेट्स डिस्कस सम बेसिक पॉइंट्स हियर. रिवोल्ट वर्ड, रिबेलियन वर्ड एंड मूवमेंट वर्ड. और एक और बात, आप बहुत ही क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि रिवोल्ट ऑफ 1857 को हम कहां प्लेस करें. तो देखो, जो टेक्निकल डेफिनेशन होती है रिवोल्ट की, रिबेलियन की और मूवमेंट की, तो सबसे पहले तो ये टेक्निकल डेफिनेशन आप जानो. तो रिवोल्ट का मतलब ये हो गया कि सडन अपराइजिंग, शॉर्ट टर्म अपराइजिंग. इसको हम क्या कहते हैं? रिवोल्ट. सडन अपराइजिंग, शॉर्ट टर्म अपराइजिंग. एक छोटे से क्षेत्र में जो लोकलाइज्ड हो, जो क्या हो? स्पॉन्टेनियस हो, सडन हो, शॉर्ट टर्म अपराइजिंग हो, कुछ समय के लिए हो. उसकी लीडरशिप क्या हो? लिमिटेड हो, लिमिटेड लीडरशिप हो, और क्या हो? मतलब ये सारी चीजें होंगी. और साथ ही साथ किसी खास पॉलिसी को लेके स्पेसिफिक ग्रीवेंस हो लोगों में, किसी खास पॉलिसी को लेके स्पेसिफिक ग्रीवेंस हो. सो ऐसी सिचुएशन को हम रिवोल्ट कहते हैं. ठीक है, ऐसी सिचुएशन को हम रिवोल्ट कहते हैं कि शॉर्ट टाइम के लिए हो, शॉर्ट टर्म अपराइजिंग हो, स्पॉन्टेनियस हो. स्पॉन्टेनियस का मतलब कई बार
अपराइजिंग होगा, स्पॉन्टेनियस का मतलब हर आदमी उस अपराइजिंग का लीडर है, ठीक है, कोई लीडरशिप आपको दिखेगी नहीं, हर आदमी अपने आप में लीडर है, उसका कोई बेटर प्लानिंग कोऑर्डिनेशन नहीं है, जिसको जैसे समझ में आ रहा है वो उस मूवमेंट को आगे बढ़ा रहा है, सो दैट इज कॉल्ड रिवोल्ट। बट वो थोड़ा ज्यादा अगर ऑर्गेनाइज हो जाए, इफ इट इज मोर ऑर्गेनाइज्ड, अगर यही चीज थोड़ी ज्यादा ऑर्गेनाइज हो जाए, थोड़े लंबे समय तक कंटिन्यू हो जाए, यानी इफ इट इज सस्टेन्ड फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, जैसे यहां पे देखो ये कब से कब तक है, 1855 से 56 तक है, तो बताओ ये शॉर्ट टर्म है कि इट इज सस्टेन्ड और लॉन्ग टर्म, ये सस्टेन्ड है लॉन्ग टर्म के लिए। साथ ही साथ संथाल हुल की जब हम बात करते हैं तो ये जिस रीजन को एड्रेस करता है वो दामन एक को रीजन है, इसके बारे में बताऊंगा, है ना, जो बहुत सारे एरियाज को अपने आप में जोड़ता है। तो यानी कि जब रिबेलियन होगा, इसका एरिया क्या है, बहुत ही लिमिटेड, बट रिबेलियन का मतलब क्या है, रिबेलियन होगा सो दिस विल बी एक्सटेंडेड अक्रॉस रीजन्स एंड मल्टीपल रीजन्स विल बी अ पार्ट ऑफ दिस, तो इसको हम क्या कहेंगे, रिबेलियन कहेंगे। यहां पे क्लियर लीडरशिप होगी, जैसे संथाल रिबेलियन में सीधू मुर्मू और कानू मुर्मू, ये दो लीडर्स हैं, सीधू एंड कानू, ठीक है, कंप्लीट नेम इज सीधू मुर्मू एंड कानू मुर्मू। ये देखो ये भी एक बहुत गड़बड़ चीज है हिस्ट्री पे, जैसे मान लो कि हम लाला लाजपत राय, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, इस तरह से यहां पे हम ट्राइबल्स में आते हैं तो सीधू कानू, भाई पूरा नाम उनका लो, सीधू मुर्मू, कानू मुर्मू, ठीक है, तो ट्राइबल आइडेंटिटी को लेके थोड़ी कंसिस्टेंस होगी। सो हियर वी आर टॉकिंग अबाउट सीधू मुर्मू एंड कानू मुर्मू, ओके, तो आप ज्यादा बेटर होगा आप पूरा नाम लीजिए, आंसर में सीधू मुर्मू, कानू मुर्मू लिख सकते हैं, ठीक है। ट्राइबल कंसिस्टेंस और आइडेंटिटी को ये ज्यादा इफेक्टिवली एड्रेस करता है। तो रिबेलियन का मतलब क्या हो गया कि वही चीज जब ज्यादा ऑर्गेनाइज हो जाए, रिवोल्ट इज मोर ऑर्गेनाइज्ड, इट इज सस्टेन्ड, इट इज स्ट्रक्चर्ड, देयर इज अ क्लियर लीडरशिप, it has extended across regions, many areas are integrated with it, it has a clear leadership, it has some particular objectives to be attained, so that is called rebellions। तो देखो मैंने कहा कि यही चीज थोड़ी ज्यादा एक्सटेंड हो गई तो क्या हो गई, रिबेलियन हो गई। यानी कि देखो यहां पे आपको समझना है कि ऑल रिबेलियंस आर रिवोल्ट, जितने भी रिबेलियन ऑल रिबेलियंस आर रिवोल्ट, हर रिबेलियन में रिवोल्ट का तो एलिमेंट होगा ही होगा, क्योंकि देखो कोई भी रिबेलियन भले ही लॉन्ग टर्म चला या सस्टेन रहा 2 साल 3 साल तक, शुरू तो कभी हुआ होगा ना, मेरी बात समझ गया। जैसे सेपॉय म्यूटिनी 1857 रिवोल्ट, शुरुआत जहां से हुई उसके लिए वो क्या हो गया, रिवोल्ट हो गया। तो देखो जितने भी रिबेलियंस हैं, ठीक है, ऑल रिबेलियंस आर रिवोल्ट्स, बट ऑल रिवोल्ट्स आर नॉट क्वालिफाइड टू बी रिबेलियन, सारे रिवोल्ट रिबेलियन नहीं हो सकते, कुछ रिवोल्ट को रिबेलियन हम कह सकते हैं, जैसे रिवोल्ट ऑफ 1857 क्वालिफाइड टू बी अ रिबेलियन, यानी रिवोल्ट ऑफ 1857 के साथ क्या खास बात है कि दिस रिवोल्ट क्वालिफाइड टू बी रिबेलियन, ठीक है। ऑल रिवोल्ट्स डोंट क्वालिफाइड टू बी रिबेलियन, यहां पे एक हमने क्या जोड़ दिया, एक्सेप्शन। अब ये बात आप याद रखोगे कि ऑल रिवोल्ट डू नॉट क्वालिफाई टू बी रिबेलियन, बट some revolts qualify to be rebellion and revolt of 1857 is such revolt, rebellion की कैटेगरी में आता है। तो रिवोल्ट स्पॉन्टेनियस है, रेबेलियन ऑर्गेनाइज्ड है। अब देखो इसी के साथ एक और वर्ड आ जाता है, मूवमेंट, ठीक है, मूवमेंट। तो मूवमेंट देखो, मूवमेंट में जो नई चीज जुड़ती है वो क्या है, पहली चीज तो इसमें एक और बात जोड़ दो, आइडियोलॉजिकली ड्रिवन। मूवमेंट क्या होता है, इट इज आइडियोलॉजिकली ड्रिवन। जैसे एनसीएम मैं करूं, सीडीएम कहूं, खिलाफत मूवमेंट कहूं, ठीक है, ऑल दीज मूवमेंट्स आर आइडियोलॉजिकली ड्रिवन। ये पहली चीज आपको ध्यान रखनी है, मूवमेंट्स आर आइडियोलॉजिकली ड्रिवन। प्लस मूवमेंट क्या होगा, यहां से भी ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड होगा, इट इज मोर ऑर्गेनाइज्ड, ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड होगा। यहां पे सबसे खास बात क्या होगी, मास पार्टिसिपेशन, और ये बात करेगा इसके क्लियर गोल्स होंगे मूवमेंट के। जैसे व्हेन एनसीएम स्टार्टेड, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्टेड, इट हैज अ क्लियर गोल दैट स्वराज विद इन 1 ईयर, है ना। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, इट हैज अ क्लियर गोल, कंप्लीट स्वराज। मेरी बात समझ गए। तो यहां पे क्या होगा, क्लियर गोल होगा। इसमें क्या होगा, एजिटेशंस भी होंगे, ठीक है, इसमें नेगोशिएशंस होंगे, ऑल फॉर्म्स दिस पार्ट ऑफ मूवमेंट, है ना। एग्जाम्पल आपका गांधीयन मूवमेंट से, वहां पे गांधीयन स्ट्रैटेजी भी है।
सो दिस ऑल इज व्हाट, मूवमेंट. आई होप दैट यू हैव गॉट द आइडिया. ठीक है, तो अभी इसमें क्या है कि मतलब हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव भी है. जब रिवोल्ट ऑफ 1857 की हम बात कर रहे हैं, तो रिवोल्ट ऑफ 1857 के बारे में, अबाउट दिस रिवोल्ट ऑफ 1857, ये आप याद रखना, अबाउट दिस रिवोल्ट ऑफ 1857, बिपान चंद्रा सेज दैट इट इज मोर देन अ म्यूटिनी बट लेस देन द फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस. ये बिपान चंद्रा का स्टेटमेंट है. दैट इज कंसीडर्ड टू बी अ बैलेंस स्टेटमेंट, जिसको हम बैलेंस स्टेटमेंट मानते हैं. बट अब हम रिवोल्ट ऑफ 1857 के बारे में ये डेफिनेशन समझने के बाद ये भी कह सकते हैं कि रिवोल्ट ऑफ 1857 इज नॉट मियरली अ रिवोल्ट. ये केवल रिवोल्ट नहीं है, ठीक है, बट इट इज ऑल्सो नॉट अ फुल फ्लेज नेशनल मूवमेंट. इसको फुल फ्लेज नेशनल मूवमेंट भी नहीं कह सकते हैं, बट इसको हम दिस रिवोल्ट क्वालिफाइड टू बी रिबेलियन. ये पॉइंट आप चाहो तो नोट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है. दिस रिवोल्ट क्वालिफाइड टू बी रिबेलियन. दूसरी चीज क्या है? This revolt qualified to be a broad-based rebellion. It is more than a revolt, less than the first Indian War of Independence, and many a times we can also refer to a proto-national movement. जब हम ऐसा कहते हैं तो हम पूरे के पूरे जो भी इस मतलब रिवोल्ट ऑफ 1857 के हिस्टोरिकल डिबेट्स हैं, इनको हम क्या कर देते हैं? बैलेंस कर देते हैं. तो while writing answer in your mains exam, ये मैटर नहीं करता है कि उसने 300 पूछा तो आप 500 वर्ड्स लिख के चले आओ. तो पहले तो आपको नंबर काटेगा भी वो, ठीक है, कि बहुत ज्यादा होशियार बन रहा है, दिखा रहा है मैं कितना बड़ा ज्ञानी हूं. कितना बड़ा ज्ञानी होने से काम नहीं बनेगा. आपके पास नॉलेज, इंफॉर्मेशन, कॉन्सेप्ट, क्लैरिटी, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द थीम्स होनी चाहिए. तभी जाके आप क्रिस्टल क्लियर, बहुत ही शॉर्ट और कॉन्साइज वे में अपनी बात को कह पाओगे. जो सबसे मुश्किल काम होता है, अपनी बात को संक्षिप्त कहना, छोटे शब्दों में कहना. मेरी बात समझ गया ना? इधर उधर की बात करना बहुत आसान होता है, बट बहुत कंसाइज वे में कहना हो तो बहुत मुश्किल हो जाता है. वो तभी आ पाता है जब हमारे पास अंडरस्टैंडिंग होती है. तो चलिए अब हम क्वेश्चन पे आते हैं. क्वेश्चन जो जुड़ा हुआ है वो है 1855-56 के संथाल हूल से. हूल मतलब क्या है? रिबेलियन. अभी आपको बताया ना, संथाल हूल या संथाल रिबेलियन. आंसर पे अभी मैं नहीं आ रहा हूं, पहले आपको संथाल हूल की कुछ बेसिक बातें बता दो. लेट्स डिस्कस सम बेसिक स्टफ अबाउट दिस संथाल हूल, और उसके बाद हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है, कि क्वेश्चन क्या है और इसके आंसर की डिमांड क्या है. तो देखो क्या है संथाल हूल और संथाल अपराइजिंग. अगर हम प्री 1857 की बात करें, इट मीन्स बिफोर 1857, तो ठीक इसके पहले जो संथाल हूल है, आई कैन ऑल्सो राइट संथाल रिबेलियन और संथाल अपराइजिंग, but here I am writing संथाल हूल because UPSC has mentioned संथाल हूल. ब्रैकेट में इसका मतलब उसने समझाया था. तो देखो 1855-56 में, 1855-56 में जो संथाल हूल है प्री 1857, नो डाउट ये इंपॉर्टेंट है. और हूल का मतलब क्या है? रिबेलियन. एंड रिबेलियन सिंपली मीन्स व्हाट? ये क्या है? इट इज मोर ऑर्गेनाइज्ड, ज्यादा ऑर्गेनाइज है, इंटीग्रेटिंग सो मेनी रीजंस. ठीक है, इसकी एक क्लियर डिमांड है, इसकी एक क्लियर लीडरशिप है. यानी कि ये ट्राइबल रिवोल्ट में भी कोई माइनर ट्राइबल रिवोल्ट नहीं है. इट इज अ मेजर ट्राइबल अपराइजिंग. इट इज नॉट अ स्मॉल ट्राइबल अपराइजिंग, बट इट इज अ मेजर ट्राइबल अपराइजिंग. मेजर ट्राइबल अपराइजिंग है और मेजर ट्राइबल रिवोल्ट है, एंड दैट इज वाई इट क्वालिफाइज टू बी रिबेलियन. इट इज अ मेजर ट्राइबल रिवोल्ट and that's why it qualifies to be a rebellion. दूसरी चीज, it has a clear leadership. Two names are very important, Sidhu Murmu and Kanu Murmu. These are the two most important names, Sidhu Murmu and Kanu Murmu. The third important point is, okay, when you look at the geographical extension of this revolt, you will find that this revolt was extended. जैसे तब डिवीजन तो था नहीं, आज डिवीजन है ना. तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक फॉरेस्ट ट्रैक्ट या हिली एरिया, ठीक है, दामन ए कोह, ये क्रिएट किया था. जैसे आप समझो दामन ए कोह 1832 में दामन ए कोह, दिस वर्ड हैज अ पर्शियन ओरिजिन और मीनिंग. ये प्रीलिम्स का भी क्वेश्चन है. इसका मतलब होता है फुट हिल्स और स्कर्ट्स ऑफ द हिल्स. फुट हिल्स और स्कर्ट्स ऑफ द हिल्स.
फुटहिल्स और स्कर्ट्स। दमन एकोह का मतलब ये होता है, फुटहिल्स और स्कर्ट्स। पर्शियन ओरिजिन का वर्ड है, यानी कि राजमहल की पहाड़ियों के आसपास जो फॉरेस्टेड ट्रैक्ट था, ठीक है, राजमहल पहाड़ियां जो हैं, राजमहल हिल्स, उनके आसपास का जो फॉरेस्टेड ट्रैक्ट था, उन सब एरियाज को 1832 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने डिमार्केट किया और उसके लिए एक पार्टिकुलर वर्ड यूज किया, दमन ए कोह। अगर आज के हिसाब से देखें, इफ वी लुक एट द टुडेज ज्योग्राफिकल सेटिंग, वी विल फाइंड दैट दिस टेरिटरी और दिस रीजन वाज कवरिंग some parts of Jharkhand, it was covering some parts of Bihar, okay, it was also covering some parts plains of Bengal, ठीक है ना, तो ध्यान रखना, foothills में it was covering some parts of Bihar, hilly areas, Jharkhand, and some parts here, especially plains in Bengal region. If you look at the today's geographical territory, so British did what? In 1832, they created this particular geographical areas, forested tract, and they termed is दमन एको। इसी को उन्होंने क्या कहा? दमन एको। अब सवाल ये आया कि इसको डिमार्केट क्यों किया, कि भाई ये पूरा का पूरा एरिया जो है ये दमन एको है, क्यों डिमार्केट किया? तो मैंने आपको पहले ही बताया कि ब्रिटिश गवर्नमेंट was more focused on maximizing revenue collection. ब्रिटिश गवर्नमेंट ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू कलेक्शन करना चाहती थी, सो इट ऑल्सो ड्रीम्ड टू ब्रिंग फॉरेस्ट एरिया और फॉरेस्ट लैंड अंडर कल्टिवेशन। तो उसकी कोशिश थी कि जो जंगल की जमीन है, बिकॉज ट्राइबल्स वर लिविंग इन इंडिपेंडेंट लाइफ, दे वर ऑल्सो डूइंग एग्रीकल्चर, बट उनको ये सिस्टम पता ही नहीं था कि किसी को रेवेन्यू भी देना होता है। तो ब्रिटिश ट्राइड दैट इफ फॉरेस्ट एरिया विल ब्रॉट अंडर कल्टिवेशन, ओके, and we will do what? We will introduce land revenue policies. We will collect land revenue from these forest areas also. अच्छा, फॉरेस्ट एरियाज में कल्टीवेशन को बढ़ा के लैंड रेवेन्यू कलेक्ट जब आप करोगे, आपको पता ही होगा कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन और झूम कल्टीवेशन, इन सब को बंद करने के पीछे रीजन है, बिकॉज व्हेन यू विल डू शिफ्टिंग कल्टीवेशन, तो आप क्या करोगे, 2 साल 3 साल पे आप कहीं और जाके शिफ्ट कर जाओगे, आपका जो एग्रीकल्चरल लैंड है वो बदलता रहेगा। और जब आप शिफ्टिंग कल्टीवेशन करोगे तो कभी भी आप वो जो रेवेन्यू नेटवर्क है उसमें आ ही नहीं पाओगे, आपसे रेवेन्यू लेना बड़ा मुश्किल हो जाएगा गवर्नमेंट के लिए। तो गवर्नमेंट का फोकस था कि रेवेन्यू कलेक्ट करें ट्राइबल से भी, तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन को बैन करो, दामन ए कोह इस एरिया को सिग्निफाई करो, और यहां पर किसानों से लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करो। अब देखो, इफ यू वांट टू कलेक्ट लैंड रेवेन्यू फ्रॉम द ट्राइबल पीपल, सो यू विल हैव टू यूज इंडियन इंटरमीडियरीज। इनको तो अंग्रेजी आती थी, ट्राइबल से कैसे बात करेंगे? यू विल हैव टू यूज इंडियन इंटरमीडियरीज। सो इंडियन इंटरमीडियरीज विल ग्रेजुअली enter the forest, and when these Indian intermediaries will enter the forest, so these intermediaries will be called dikus by the tribals. और इन इंटरमीडियरीज में धीरे धीरे मनी लैंडर्स भी हैं, साहूकार जिसको आप कहते हो, ठीक है, ये लोग भी शामिल हैं। सो दे विल क्रिएट एडिशनल चैलेंजेस फॉर द ट्राइबल पीपल हु आर लिविंग इन दीज एरियाज। तो फ्रॉम 1832 ऑनवर्ड्स, दमन ए कोह रीजन was created as a separate administrative zone, and the British government took several initiatives to bring land area under cultivation in Daman and Koh region so that they could collect more and more revenues, and for that purpose they used Indian intermediaries. So Indian zamindars, money lenders, they entered into the forest, who were acting like intermediaries for the who were acting like junior partners for the Britishers, and revenue extraction started. Okay, ultimately when the tribals will not be able to pay the revenue, or in case they fail, they will be given loans, they will come under debt trap. Okay, their exploitation will start. So gradually from 1832 we see कि 1855-56 आते आते कितने साल हो गए, अब आप जोड़ लो, ठीक है, it is almost 25 years. So in these 25 years what happened? Okay, the people in these areas, Daman and Koh region, were exploited by the colonial policies. Got it? And
obviously when they will be exploited, so they will react, and this reaction will come in the form of संथाल रिबेलियन। यही रिएक्शन किस रूप में हमारे सामने आता है? संथाल रिबेलियन के रूप में 1855-56 में। और इसके ठीक बाद क्या है? रिवोल्ट ऑफ 1857। तो दामन एक को क्या है? एक सेपरेट एडमिनिस्ट्रेटिव जोन है। इट इज अ सेपरेट एडमिनिस्ट्रेटिव जोन। आई होप दैट यू हैव गॉट माय पॉइंट। इट इज अ सेपरेट एडमिनिस्ट्रेटिव जोन। नाउ वी आर कमिंग टू द क्वेश्चन। ठीक है, अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। आपको एक्सटेंशन पता हो गया, बिहार, झारखंड, प्लेन्स ऑफ बंगाल। दमन एक को रीजन भी लिख सकते हो। It was a separate administrative zone created by the British in 1832. And in this entire zone, संथाल tribals were the most important tribals. संथाल tribals से और भी छोटे छोटे ट्राइबल ग्रुप थे, बट ये सबसे इंपॉर्टेंट थे। इनका लंबे समय से मोर देन 25 ईयर्स से एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था। ठीक है, अब देखो फिर से अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। ये लिखना नहीं है जो मैंने बताया, ये इसलिए बताया ताकि संथाल रिबेलियन या संथाल हूल जब भी कहा जाए तो आपके दिमाग में एक पूरा का पूरा पिक्चर आ जाना चाहिए, तभी आप आगे की कहानी समझ पाओगे, नहीं तो कभी नहीं समझ पाओगे। क्वेश्चन फिर क्या है? संथाल रिबेलियन और संथाल हूल वाज द मोस्ट इफेक्टिव ट्राइबल मूवमेंट। अब यहां पे देखो, यहां पे while reading statements, okay, you will have to be alert whenever you will find a keyword that is over emphasizing। prelims में भी देखना, जहां पे भी over emphasize किया होता है, जैसे only लिख दे, ठीक है, या इस तरह से लिखे तो फिर थोड़ा सा अलर्ट होना पड़ता है। सो इट इज राइटिंग इट इज द मोस्ट इफेक्टिव ट्राइबल मूवमेंट इन प्री 1857 इंडिया। देखो इसमें कोई डाउट नहीं है कि इट इज वन ऑफ द इफेक्टिव एंड इंपॉर्टेंट ट्राइबल रिवोल्ट प्री 1857, बट यहां पे जो मोस्ट इफेक्टिव लिखा है, देखो रिसेंट हिस्टोरिकल डेवलपमेंट्स, अभी जो हिस्टोरिकल डेवलपमेंट्स है, हिस्टोरियोग्राफी है, इसमें जो कोल रिबेलियन है, ठीक है, कोल रिबेलियन को भी इंपॉर्टेंट माना जाता है। संथाल नो डाउट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बट कोल रिबेलियन भी इंपॉर्टेंट है। तो देखो कहीं ना कहीं दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो हैविंग अ हिस्टोरियोग्राफिकल पर्सपेक्टिव। तो यहां पे हमें उस हिस्टोरियोग्राफिकल पर्सपेक्टिव की तरफ हिंट जरूर दे देना है। वाइल राइटिंग आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन वी विल डू अ हिंट। ठीक है, हम हिंट देंगे। देखो क्या है हिस्टोरियोग्राफिकल पर्सपेक्टिव, जो नेशनलिस्ट हिस्टोरियंस है, दे विल डू व्हाट? They will say that tribal revolts, tribal uprisings or hools, they are what? They are early resistance to colonialism. Why nationalist historians are saying they are early resistance to colonialism? Against colonialism or against colonial structure, one of the most impactful revolt was revolt of 1857, जिसमें सेपोइस के अलावा दूसरे जो मासेस हैं उनका पार्टिसिपेशन देखने को मिलता है। बट इसके पहले भी पावरफुल ट्राइबल अपराइजिंग्स हैं जिनको हम रिबेलियंस की कैटेगरी में रख रहे हैं। कोल को रख रहे हैं, संथाल को रख रहे हैं। इसका मतलब ब्रिटिश कॉलोनियल स्ट्रक्चर को लेके उसका जो विरोध है, उसका जो प्रतिरोध है, अगर वो सबसे पहले उभरा तो किसकी तरफ से उभरा? जनजातियों की तरफ से उभरा, ट्राइबल्स की तरफ से उभरा। ये इस बात का प्रमाण है। एंड दैट इज व्हाट नेशनलिस्ट हिस्टोरियंस से, दैट व्हेनेवर वी टॉक अबाउट ट्राइबल अपराइजिंग्स, सो दे आर लाइक अर्लियर रेसिस्टेंस टू द कॉलोनियल स्ट्रक्चर, दे आर लाइक अर्लियर रेसिस्टेंस टू द कॉलोनियलिज्म। ठीक है, जब मार्क्सिस्ट हिस्टोरियन बात करेंगे तो उनका एजेंडा फिक्स है, इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन, ठीक है, क्लास कॉन्फ्लिक्ट, एग्रेरियन डिस्ट्रेस, इस पे उनका पूरा का पूरा फोकस होगा। और देखो यहां पे एग्रीकल्चर एक बड़ा इशू तो है ही है, बिकॉज दामन एक को रीजन में क्या करना था? एग्रीकल्चर से रेवेन्यू कलेक्ट करना था, शिफ्टिंग कल्टीवेशन बैन करना था। दिस इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर। ओके, सो दिस इज द पॉइंट। सबल्टन जब भी बात करेंगे तो दे टॉक ओवर एम्फेसाइज फ्रॉम बिलो, तो ट्राइबल्स के रोल को वो इंपॉर्टेंट बताएंगे, कहेंगे देखो भैया ट्राइबल का रोल ऑक्सिलरी नहीं था। एस्टैब्लिश हिस्ट्री राइटिंग में ट्राइबल्स के रोल को ऑक्सिलरी दिखाया गया। ऑक्सिलरी कहा है? Here the tribal voice is autonomous voice. The tribal consciousness is the autonomous consciousness. And who is trending first? Earlier resistance to the colonial authority, these are the tribal people. ठीक है, तो ट्राइबल का तो रोल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस तरह की बातें चलती हैं। So there are various debates here also on tribal revolt. So there are multiple questions. Okay, because here we will discuss 5-year question. So we'll get other questions also on tribal revolt. वहां पे भी कुछ हम बात करेंगे, तो धीरे धीरे एक कंप्लीट पिक्चर PYQ के थ्रू भी आपके दिमाग में आ जाएगी। So there is no need or no need to much worry. कोल रिबेलियन की मैं बात कर रहा था, I was talking about the कोल रिबेलियन। तो देखो
कोल रिबेलियन जो था, जैसे अगर इंपैक्ट के बारे में देखा जाए, दो चीजें हैं। संथाल कब है? 1855-56 में है। एक और रिवोल्ट है कोल रिबेलियन, थोड़ा सा वो भी इनसाइट में बता दूं, है ना, देन वी विल मूव अहेड। जैसे देखो, वन रिबेलियन इज कोल रिबेलियन। कोल रिबेलियन 1831-32, ध्यान रखना ये आपका गेस्ट क्वेश्चन भी है। संथाल से क्वेश्चन बनेगा, कोल रिबेलियन से क्वेश्चन बनेगा, संथाल और कोल को कंपेयर करते हुए भी क्वेश्चन बन सकता है। तो आपको एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर रहना चाहिए। यहां पे हमने क्या कहा? संथाल रिबेलियन, रिबेलियन 1855-56। तो सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि हम इसको भी रिबेलियन कह रहे हैं और इसको भी रिबेलियन कर रहे हैं, यानी ये क्या है? दीज आर द मेजर ट्राइबल अपराइजिंग्स, these are the major tribal uprising, both are the major tribal uprising। अच्छा, प्री 1857 यानी 1857 के पहले we see these two are major tribal uprising। अगली बात क्या देख रहे हो कि अगर इन दोनों में कंपेयर करें कि जो ब्रिटिश कॉलोनियल स्ट्रक्चर है उसको रेसिस्ट सबसे पहले किसने किया? कोल ने किया कि संथाल ने किया? अर्लियर रेसिस्टेंस टू द ब्रिटिश कॉलोनियल स्ट्रक्चर। अब यहां पे अगर हम दोनों में कंपेयर करें, इफ वी कंपेयर बोथ, so we will find that coal rebellion is the earlier resistance to British colonial structure। कोल रिबेलियन क्या है? ब्रिटिश कॉलोनियल स्ट्रक्चर को क्या कर रहा है? अर्लियर रेसिस्टेंस है, ये है। इफ वी कंपेयर विथ प्री 1857 इट इज द अर्लियर रेसिस्टेंस, बट इफ वी कंपेयर इन बोथ दीज टू, दिस इज हैविंग द अर्लियर रेसिस्टेंस। तो जो पहले रेसिस्ट किया उसका इंपॉर्टेंस तो वैसे भी ज्यादा हो गया। ये भी रिबेलियन, ये भी रिबेलियन, ये भी मेजर ट्राइबल अपराइजिंग, ये भी मेजर ट्राइबल अपराइजिंग, दिस इज द अर्लियर रेसिस्टेंस। तो इन दिस केस दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट एंड दिस इज मोर इंपॉर्टेंट। पहली चीज तो यही हो गई कि जो अर्ली रेसिस्टेंस है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट। दूसरी चीज, व्हेन यू लुक एट द इंपैक्ट, सो यू विल फाइंड दैट कोल रिबेलियन, according to the modern historical developments, coal rebellion is more transformative when we compare it with Santhal rebellion। ठीक है, it also had significant impact, इसने भी significant impact create किया, but it was more transformative। तो whenever you get a comparative question तो आपको ध्यान रखना है। प्लस जब इस तरह का क्वेश्चन आए, ओके, तो थोड़ा सा इस बात का भी रेफरेंस आपके क्वेश्चन में आना चाहिए। When you will include these reference, your answer will qualitatively be better। अब देखो, in 150 words we don't have much scope, but आंसर लिखने की यही क्वालिटी होती है कि 150 वर्ड्स में भी आपने एग्जामिनर को एक हिंट दे देना है कि भाई ये जो क्वेश्चन पूछा गया है इसके जितने इंटेलेक्चुअल लेटेस्ट डेवलपमेंट, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट्स, एनालिसिस, डिस्कोर्स है उससे मैं फैमिलियर हूं और मैं 150 वर्ड्स के अंदर ही बताऊंगा और आपको सारी चीजें बताऊंगा, आपको एक हिंट दूंगा। तो एग्जाम में, यूपीएससी में आप एक बेटर बैलेंस्ड आंसर के साथ साथ एग्जामिनर तक एक मैसेज भी डिलीवर करते हो। एंड द मैसेज डज नॉट मीन कि पूरा लिखे हुए डिलीवर नहीं होगा, शॉर्टकट शॉर्ट में भी डिलीवर हो सकता है ना। ठीक है, चलिए, तो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द आंसर। क्वेश्चन फिर से रीड कर दे रहा हूं। डू यू फील दैट संथाल हुल means rebellion 1855-56 was the most effective tribal movement in pre-1857 India? This is the question. Now we are coming to the answer. The Santhal Hul was one of the most significant tribal uprising। यहां हमने लिखा इंट्रोडक्शन में ही कि it was one of the most significant tribal uprising in pre-1857 India। देखो, जीएस के बच्चों को पढ़ाते वक्त इसको ऐसे ही बताया जाता है कि it is one of the most significant tribal uprising। ऑप्शनल में थोड़ा ये पर्सपेक्टिव लेके मैं आता हूं, ओके। हिस्टोरिकल डिबेट्स जीएस में उतना ज्यादा नहीं बताना होता है, तो प्लस मार्क लिमिटेशंस भी होती हैं क्लासेस की। अब देखो क्या है, यहां पे हमने क्या कहा, वन ऑफ, यहां पे एक देखो, केयरफुल सिलेक्शन ऑफ द वर्ड्स। मैंने ये नहीं लिखा इट इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट, क्या लिखा? इट इज वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट ट्राइबल अपराइजिंग। व्हाई आई एम राइटिंग वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट? बिकॉज संथाल रिबेलियन के अलावा कोल रिबेलियन भी तो है भाई सिग्निफिकेंट। 1831-32 चाहो तो यहां पे आप स्ट्रक्चर ड्रॉ करके लिख सकते हो। ठीक है, कुछ स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करके भी हम हिंट देते। व्हेन वी डोंट हैव मच स्कोप तो हम कभी कभी, जैसे ये चीज जो आपने लिखी, इसका एक स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हो। अभी अभी जो मैंने बताया ना, कहां गया, हाँ,
संथाल कोल का एक स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर मोर ट्रांसफॉर्मेटिव, ऐसे एक स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दो तो एग्जामिनर विल अंडरस्टैंड कि आपको वो डिबेट पता है। अब देखो क्या है, मार्क्ड बाय इट्स स्केल, ऑर्गेनाइजेशन एंड इंटेंसिटी। तो किसी भी रिबेलियन को मापने के पैरामीटर्स जो होते हैं वो यही होते हैं, स्केल, इंटेंसिटी और उसका जो ऑर्गेनाइजेशन है। लेड बाय सिधू एंड कानू मुर्मू, इट मोबिलाइज थाउजेंड्स ऑफ संथाल्स अगेंस्ट कॉलोनियल अथॉरिटीज। देखो कॉलोनियल अथॉरिटीज के खिलाफ, जमींदार्स एंड मनी लेंडर्स बिकॉज दे वर द डिकूज, तो इनके खिलाफ भी ये रिवोल्ट था, रिफ्लेक्टिंग डीप एग्रेरियन एंड सोशल डिसकंटेंट। अब क्वेश्चन में ही हमने इंडिकेट कर दिया कि ट्राइबल डिससेटिस्फेक्शन के पीछे जो रीजन था वो क्या था, एग्रेरियन एंड सोशल डिसकंटेंट। एग्रेरियन डिसकंटेंट क्यों बताया, क्योंकि पीछे की कहानी आपको पता है, दमन एक को रीजन, एग्रीकल्चर, बैन ऑन शिफ्टिंग कल्टीवेशन। तो जब आप ये जानोगे तभी तो आप ये कीवर्ड यूज कर पाओगे, एग्रेरियन एंड सोशल डिसकंटेंट। अगर आप दमन एक कोह का मतलब ही नहीं जानते, पीछे की कहानी नहीं जानते, तो आप कॉम्पैक्ट आंसर नहीं लिख सकते। नाउ वी विल कम टू द मेन बॉडी, दिस इज इंट्रो, दिस इज मेन बॉडी एंड दिस इज व्हाट, कंक्लूजन। मेन बॉडी में पहली चीज मैंने बताई कि द रिबेलियन, आई एम यूजिंग द वर्ड रिबेलियन, द रिबेलियन वाज इफेक्टिव इन डेमोन्स्ट्रेटिंग ऑर्गेनाइज्ड ट्राइबल रेसिस्टेंस। तो ऑर्गेनाइज्ड ट्राइबल रेसिस्टेंस था, इसका ये तो बिना हम पढ़े भी लिख सकते हैं, रिबेलियन है तो क्या होगा, ऑर्गेनाइज्ड ही होगा। एंड पोज्ड अ सीरियस चैलेंज टू ब्रिटिश अथॉरिटी, इट फोर्स्ड द कॉलोनियल स्टेट टू इंट्रोड्यूस एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस। यानी हमने यहां इंपैक्ट की भी बात कर दी कि आफ्टर दिस संथाल रिबेलियन कॉलोनियल अथॉरिटी इंट्रोड्यूस सिग्निफिकेंट चेंजेस, उनको कुछ चेंजेस भी इंट्रोड्यूस करने पड़े, जैसे क्रिएशन ऑफ संथाल परगना, संथाल परगना बनाया, और भी चेंजेस है बट हम 150 वर्ड्स में सब कुछ नहीं बता सकते। तो हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट बता दिया एग्जामिनर को कि हमें पता है देयर वर सिग्निफिकेंट चेंजेस इंट्रोड्यूस्ड बाय संथाल अपराइजिंग। अच्छा, कोल अपराइजिंग के बाद भी सिग्निफिकेंट चेंजेस हुए, ये दोनों चीजें आपको हिस्ट्री ऑप्शनल फाउंडेशन क्लास में पढ़ाई गई होंगी कि कौन कौन से एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस होंगे। जब आप उसको पढ़े होगे तो समझ पाओगे। एज रंजीत गुहा, अब यहां पे हिस्टोरियंस पर्सपेक्टिव has also been included, रंजीत गुहा। Why I have included रंजीत गुहा? मैंने कहा कि जब भी रिवोल्ट और रेबेलियन से क्वेश्चन आए तो सबल्टन पर्सपेक्टिव को इंक्लूड करना है, वहां मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव भी इंक्लूड कर सकते हो। तो रंजीत गुहा says that संथाल अपराइजिंग रिप्रेजेंटेड ऑटोनोमस ट्राइबल इंसर्जेंसी। यहां पे क्या कहा इन्होंने, ऑटोनोमस, यानी इसको ऑक्सिलरी मत समझो, फिल्म का मेन हीरो यही है, ट्राइबल अपराइजिंग सपोर्टिंग एक्टर नहीं है, ये मेन एक्टर है। तो सबल्टन यही दिखाते कि जो सबल्टन ग्रुप्स हैं दे आर द मेन एक्टर, दे आर नॉट द सपोर्टिंग एक्टर। बट प्रीवियस हिस्ट्री राइटिंग ने उनको फ्रिंज एलिमेंट्स बना दिया, ठीक है, गेस्ट रोल और सपोर्टिंग रोल में ला दिया। दूसरा पार्ट आंसर का, हाउ इट्स इफेक्टिवनेस वाज लिमिटेड, इसका प्रभाव फिर भी सीमित रहा अनलाइक ब्रॉडर मूवमेंट्स। अब देखो अगर हम कंपेयर करेंगे इसको 1857 से, एनसीएम से, सीडीएम से, तो ये लिमिटेड तो है उसके कंपैरिजन में। इट रिमेन्ड रीजनली कन्फाइंड, रीजनली कन्फाइंड किस क्षेत्र तक था, लिमिटेड टू दामन एको रीजन ओनली। अब बंगाल, बिहार या प्लेन्स ऑफ बंगाल, बिहार, झारखंड, प्लेन्स ऑफ बंगाल, राजमहल हिल्स ट्रैक्ट, इतना सब कुछ लिखने की जगह आप सिर्फ एक वर्ड लिखो अपने आंसर में, क्या, दमन ए कोह रीजन। तो देखो आपने वर्ड सेव कर लिए कि नहीं, ठीक है, एक्सटेंशन लिखने की जगह दमन ए कोह रीजन लिखो। बहुत हुआ तो इसके आगे और एक बात लिख दो, 1832 क्रिएटेड बाय ब्रिटिश अथॉरिटीज, बट इतना नहीं लिखना है, दमन ए कोह लिखोगे तो आपकी कॉपी इवेलुएट करने वाला इतना बुद्धिमान होता है कि समझ जाएगा, ठीक है, घबराना नहीं है। चलिए, इट वॉज इवेंचुअली सप्रेस्ड ड्यू टू द लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन एंड मॉडर्न रिसोर्सेज। देखो ब्रिटिश कॉलोनियल अथॉरिटीज सप्रेस दीज अपराइजिंग्स, क्यों, क्योंकि देखो ये अनइक्वल काइंड ऑफ स्ट्रगल था। ब्रिटिश हैड मॉडर्न इक्विपमेंट्स, ट्राइबल्स के पास अपने ट्रेडिशनल वॉरफेयर्स थे, ट्राइबल्स का जो भी अपराइजिंग था वो बहुत कोऑर्डिनेटेड नहीं था, प्लान नहीं था, तो ये तो लिमिटेशंस है। तो आपने यहाँ पे क्या बता दिया, यू हैव ऑल्सो टॉक्ड अबाउट द लिमिटेशंस ऑफ दीज ट्राइबल अपराइजिंग, कि ब्रिटिश कॉलोनियल अथॉरिटीज सप्रेस्ड इट। हाउ दे वर एबल टू सप्रेस इट, बिकॉज देयर वर सीरियस लिमिटेशंस। वो लिमिटेशंस क्या है, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, लैक ऑफ मॉडर्न रिसोर्सेस। अब यहां पे देखो, यहां पे मैंने क्या किया, हिंट दिया एग्जामिनर को कि अगर मैं संथाल अपराइजिंग की बात कर रहा हूं तो संथाल रिबेलियन की बात कर रहा हूं तो मुझे कोल रिबेलियन के बारे में भी पता है, दैट
कंपेयर्ड टू अदर अपराइजिंग्स लाइक द कोल रिबेलियन, यानी कोल रिबेलियन से जब हम कंपेयर करते हैं तो मैंने कहा ना कि संथाल रिबेलियन और कोल रिबेलियन ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कंपैरेटिव एनालिसिस के लिए, और लेटेस्ट हिस्टोरिकल स्टडीज इसी बात पे फोकस्ड है कि इंपैक्ट दोनों का क्या था। ठीक है, तो देखो कंपेयर करते हैं तो संथाल रिबेलियन वाज लार्जर बट नॉट नेसेसरली मोर ट्रांसफॉर्मेटिव, यानी व्हेन वी कंपेयर बोथ दीज टू, सो संथाल रिबेलियन वाज लार्जर, it was expanded to a more larger area, that is Daman-Eko region, but it was not necessarily more transformative, यानी obvious संथाल rebellion was transformative, लेकिन ये उतना transformative नहीं था जितना कि कोल rebellion था। Now lastly you will write the conclusion, and what is the conclusion? Conclusion is while the संथाल हूल, देखो ऐसा नहीं कि संथाल rebellion हूल ऐसा लिख देना, संथाल हूल rebellion नहीं, संथाल हूल, it was among the most impactful tribal movements, but it cannot be unequivocally termed as the most effective। तो हमने इस स्टेटमेंट से पूरी तरह से हम क्या हुए, पूरी तरह से एग्री नहीं है, तो यहां पे हमने है ना उसको बता दिया। ठीक है कि अनइक्विवोकली, इट कैन नॉट बी अनइक्विवोकली टर्म्ड एज द मोस्ट इफेक्टिव। अच्छा, अगर कहीं आप ये स्टैंड ले लेते कि हाँ भाई आप सही कह रहे हो, द स्टेटमेंट इज कंप्लीटली ट्रू, इट इज कंप्लीटली करेक्ट कि संथाल रिबेलियन वाज द मोस्ट इफेक्टिव इन प्री 1847, बाई इफेक्टिव था, बट हिस्टोरिकल डिबेट्स को जब हम देखते हैं तो कोल वाज मोर ट्रांसफॉर्मेटिव। ठीक है, ये बातें हैं। अब जैसे मैंने कहा कि संथाल और कोल, वी हैव टॉक्ड अबाउट दीज टू रिबेलियंस। ठीक है, एंड व्हेन वी टॉक अबाउट द इंपैक्ट, तो इंपैक्ट जानने के लिए आपको क्या करना होगा, संथाल रिबेलियन के बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कौन कौन से एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस इंट्रोड्यूस किए, आफ्टर कोल रिबेलियन, आफ्टर संथाल रिबेलियन, व्हाट आर द इंपॉर्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस introduced by the British government or colonial authority। Okay, this is a part of history optional foundation class program। तो जब आप इस बात को समझोगे तो कंपेयर करोगे, और बताओ कि जब ये इन टोटालिटी आप पढ़ लोगे तो कभी भी थोड़े से हिस्टोरियन इनसाइट्स भी पढ़ लोगे तो कभी भी चाहे जितना डिफिकल्ट क्वेश्चन है, इट इज वेरी इजी फॉर यू टू राइट। अच्छा, सबसे मजेदार बात क्या है कि इस आंसर में हमने वो सब नहीं लिखा, शिफ्टिंग कल्टिवेशन वाज बैन, ट्राइबल्स के कस्टम्स रिचुअल्स में इंटरफेयर किया। 90% बच्चे एग्जाम में जाके यही लिखते हैं ऑप्शनल में। ठीक है, जीएस टाइप ऑफ आंसर। ठीक है, क्लास नोट्स भी देखना ऑप्शनल के कैसे, मतलब तो थोड़ा सा आपको समझना होगा कि ऑप्शनल पढ़ना जीएस पढ़ने से ज्यादा आसान है। अब आप बताओ कि व्हेन यू लुक एट दिस आंसर, कितने फैक्ट्स दिख रहे हैं आपको किसी भी आंसर में जो मैंने डिस्कस किया? ये आपको सोशियोलॉजी, पीएसआईआर या फिलोसफी के आंसर की तरह लग रहा है कि नहीं लग रहा है? कितने फैक्ट्स आपको दिख गए? बहुत हुआ तो आपने एक दो जगह कहीं पे ईयर्स का, सिर्फ इसकी बात नहीं कर रहा हूं, एनी आंसर दैट आई एम डिस्कसिंग विथ यू, लुक हियर हाउ मेनी फैक्ट्स आई हैव यूज्ड। तो हिस्ट्री को लेके तो पहला एक जो मिसकॉन्सेप्शन है, इट इज ओवरबर्डेन्ड विद द फैक्ट्स। ठीक है, प्रीलिम्स में भी बहुत स्ट्रक्चर्ड तरीका है पढ़ने का हिस्ट्री, यू विल नॉट बी ओवरबर्डेन्ड विद द फैक्ट्स, बट ये क्या है, दिस इज अ वेरी केयरफुल स्टडी। ठीक है, एंड फॉर दैट इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ एफर्ट, not only from the students but from the teachers side also, because this exam is a teacher led exam. If one teacher performs better, you will find that the result of that particular subject will improve overall, but the condition is that वो teacher कौन है ये बच्चों को पता भी होना चाहिए, नहीं तो फिर दिक्कत होगी। आपको पता है PSIR performing good for the last many years, why? Because of one teacher, one single teacher, honest efforts of one single teacher, I will not take the name। ठीक है, बट यू ऑल नो। ठीक है, सो एनी ऑप्शनल परफॉर्म्स बेटर इन यूपीएससी। ओके, तो लोगों को लगता है ये ट्रेंड चल रहा है, ट्रेंड नहीं चल रहा है, उसके पीछे किसी एक टीचर की बहुत ईमानदार कोशिश चल रही है। ठीक है, और वो टीचर धीरे धीरे जब बच्चों तक पहुंचता है और मेंस लिखने वाले बच्चे उससे जुड़ने लगते हैं, देन द एंटायर सिनेरियो इज चेंज्ड, ईच एंड एवरीथिंग इज ट्रांसफॉर्मेटिव। सो माई एफर्ट इज दिस, मेरी कोशिश यही है, मैं विजिबल नहीं हूं, मेरी वीडियोस बच्चों तक नहीं पहुंच पा रही है, कितना टाइम लगेगा मुझे नहीं पता, बट माई एफर्ट इज दिस कि इफ वी आर वर्किंग ऑन हिस्ट्री ऑप्शनल, ओके, वी विल ट्राई टू ब्रिंग इट
or we will try to bring it back to its previous glory. Okay, that is the point. ठीक है, तो this is what UPSC, you know that there are different shift changes होते रहते हैं. ठीक है, वो changes यही है. ठीक है, टाइम टू टाइम जो आपको चेंजेस दिखता है, शिफ्ट दिखता है, वो यही दिखता है. क्वेश्चन, एग्जाम की नीड वो दूसरे पैटर्न पे चल रहा है, बच्चों की तैयारी दूसरे पैटर्न पे चल रही है. तो जब वो सिंक नहीं होगा, कोऑर्डिनेटेड एफर्ट नहीं होगा, तो फिर धीरे धीरे ग्रेजुअली रिजल्ट क्या होने शुरू हो जाएंगे, डिक्लाइन होने शुरू हो जाएंगे. दिस इज ट्रू विथ ईच एंड एवरी ऑप्शनल. सो नाउ इट इज एग्जाम इतना डायनेमिक हो चुका है कि द टीचर्स नोट्स, द टीचर्स लेक्चर, दिस शुड बी कॉन्टिन्यूअसली अपडेटेड. Every year the teachers notes, optional notes should be updated. This should be in sync with the demands of the exam, and PYQs should be made an essential program with history optional subject, because even if you have read history optional in depth, in totality, but you have not practiced PYQs, your work is not complete. It's half done. ठीक है? So your lectures plus PYQs, when you will do both, then you will find that you are in a more comfortable position, and at the same time you are doing writing practice. This will make you excellent, okay, for your exam. So I hope that today you have got this idea. So today we have discussed only 3 questions. In my next video, that is part C, we will do what? We will discuss again question number 3. अगले में हम क्या करेंगे, सीधे चले आएंगे क्वेश्चन नंबर 3. देखो क्वेश्चन नंबर 3 है ना. सो इन नेक्स्ट वीडियो आई विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 3 A, B एंड C. फिर उसके बाद वाले वीडियो में हम क्या डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 A, B एंड C. देन विल शिफ्ट टू 2021. सो इन दिस वे छोटे छोटे वीडियोस होंगे तो हम ज्यादा एक्सटेंशन कर सकते हैं, क्योंकि एक शिफ्ट में 4-5 घंटे का टाइम मुझे मिल नहीं पा रहा है. तो मुझे लग रहा है कि ये ज्यादा बेटर है. तो इंस्टेड कि मैं स्किप करके आगे बढ़ूं, मैंने सोचा कि जब कर रहे हैं तो ठीक से करें इसको. ठीक है, कि आप एक बार क्वेश्चन करो, देन यू गैदर सम कॉन्फिडेंस. ठीक है, कि चीजें हो रही हैं. चलिए, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू. मिलते हैं अगली वीडियो में.